بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ایوری ون. آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. کورس 4 سورۃ البقرہ. سب سے پہلے میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ کے مائکس آف رہنا بہت ہی ضروری ہے. سو پلیز آپ کیونکہ آپ کی طرف سے آپ کے گھر سے آوازیں جو ہے اس میں آ رہی ہوتی ہے تو اپنا رسپانس کرنے کے فوراً بعد آپ مائک کیا کریں. تھینک یو ایوری ون. آپ سب کو گزشتہ عید الاضحیٰ مبارک ہو. الحمدللہ اس سال کا جو حج تھا وہ بھی ہمارے مسلمان بہن بھائیوں نے ادا کیا. وہ بھی ہم سب کو مبارک, ہم سب کو مبارک. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کی بہت سی عیدیں اور جو ہے حج جو ہے وہ سب کے نصیب کرے انشاءاللہ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور جیسا کہ ابتلا منزل سے ہم اس وقت قرآن کلاس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں 24/7. ہمیں قرآن کا نالج اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. اور قرآن کورس 4 کے جو مقاصد ہیں ان کو ہم اچیو کر رہے ہیں الحمدللہ. 90% الفاظ, صفحہ نمبر 11 سے 15, اور اسی طرح زندگی میں لے کر آ رہے ہیں اشاروں اور فکروں کے ذریعے. نحو, صرف اور نحو کے قواعد ہم سیکھ رہے ہیں. تو الحمدللہ آج ہم نحو کی طرف بات ہماری شروع ہوگی. یہ خوشی کی بات ہے. بول چال کے جملے بھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہمارے چل رہے ہیں. اگر اوور آل دیکھا جائے تو ہم نے صفحہ نمبر 11, 12 اور 13, صفحہ نمبر 11, 12 تو ہم مکمل کر چکے ہیں. صفحہ نمبر 13 ہمارا آج مکمل ہوگا. سو اس کے فرسٹ ہاف تک ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 77 سے 90 مکمل کی ہے. اور ہم نے گرامر میں بہت سارے کانسیپٹس پڑھے ہیں, جیسے مؤنث کے سیغے ہم نے سیکھے, تسنیہ کے یعنی 2 کے سیغے, اس کے علاوہ فعل مجهول, کروما اور حسیبہ کے جو پیٹرن ہیں ہم نے ان پہ بات کی. اسم مکان کو ہم نے سیکھا. پھر ہم نے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جمع تکسیر مکسر, اس کے بارے میں بات ہوئی. پھر اس کے بعد صفت, تفضیل اور مبالغہ, یہ 2 ٹاپک ہمارے لاسٹ ٹائم تھے. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو سیکھنے کا عمل اسی طرح سے جاری ہے. ہم نے کورس 2 میں پہلے 5 صفحات کو انڈرسٹینڈ کیا. کورس 3 جو ہم نے پڑھا اس میں ہم نے صفحہ نمبر 6 سے 10 کو پڑھا. اب چوتھا حصہ کورس 4 الحمدللہ اپنے مڈ تک پہنچ چکا ہے. آج کے لیسنز کے بعد اگلی جمعے کو ہم مڈ ریویژن کریں گے. اس سے اگلے جمعے کو مڈ کوئز ہوگا. تو دس از رائٹ ٹائم ٹو ریوائز آل پریویس کانسیپٹس. جتنے بھی پچھلے ہم نے پڑھے ہیں وہ یہی دن ہے, کیونکہ آخری 2 دن 3 دن میں تو بہت برڈن فیل ہوتا ہے نا. تو گریجولی چیزوں کو ریوائز کرنا شروع کریں. آج یہ صفحہ نمبر 13 ہمارا مکمل ہوگا, جو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ انفارم کر رہا ہے اور ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ ہمیں کیسے اپنا رویہ رکھنا چاہیے. اور ہمارے رائٹ ہینڈ پر جب ہم ان صفحات کو پڑھتے ہیں تو ہم صفحہ نمبر 11, 12, 13, 14, 15 پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر ہم جو اشارے پڑھتے ہیں ذرا آپ لوگ دہرا لیجیے. صفحہ نمبر 11 پہ کیا ہوتا ہے؟ اہل پڑھے لکھوں کا حال, آگ صرف چند دن کی, قاعدہ آگ اور جنت کا. ویری نائس, ویری نائس. اس کے بعد صفحہ نمبر 12 میں کیا ہوتا ہے؟ میثاق خون, قتل و اخراج, بعض کتاب پر ایمان, موسیٰ عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک. شارٹ ورڈز میں ہم کہہ سکتے ہیں جاہل, چند دن, قاعدہ, میثاق, اسی طرح سے میثاق خون, قتل و اخراج, فاضل کتاب اور موسیٰ و عیسیٰ. اور جب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 13 پر جو کہ آج ہم مکمل کر رہے ہیں, تو کون سے 4 اشارے ہیں؟ کتاب آنے پر انکار, پورا سودا کفر کا, ایمان لاؤ, میثاق طور اٹھا کر. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آخری 2 حصے آج پڑھیں گے, ایمان لاؤ اور میثاق طور اٹھا کر. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر پڑھ لیجیے 4 اشارے. کتاب آنے پر انکار, پورا سودا کفر کا, ایمان لاؤ, میثاق طور اٹھا کر. اور شارٹ ورڈز میں ہم کہہ سکتے ہیں انکار, برا سودا, ایمان. کتاب کا انکار برا سودا ہے, ایمان لاؤ اور میثاق طور یاد. تو اس جملے کی نسبت سے یہ 4 الفاظ یاد رکھنا ہمیں مزید آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ مسکراتے ہوئے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس قابل ہوئے اور اس وقت تک پہنچے کہ ہم آج آیت مبارکہ نمبر 91, 92 اور 93 کو سمجھیں گے انشاءاللہ. تو آیت نمبر 91, 92 آ رہا ہے. سبق نمبر کون سا آ رہا ہے؟
13C میں 13C، ٹھیک ہے، اور اس کا نام ہے ایمان لاؤ. تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. پچھلے آیات کی اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد یعنی غلط عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے. ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال چیک کرنا چاہیے. تو یہ ڈسکشن چل رہی تھی آلریڈی. تو آج کی جو 2 آیات ہیں ان میں ہم دیکھیں گے کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ان پر تورات میں نازل کیا گیا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دعوے میں سچے نہ ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اگر تم تورات کے ماننے والے ہوتے تو نبیوں کو قتل نہ کرتے اور نہ ہی کسی بچڑے کی عبادت کرتے، ٹھیک ہے. سو یہاں ہم دیکھیں تو خوشی کی بات اچیومنٹ محسوس ہوتی ہے کہ بیشتر الفاظ ہمیں آتے ہیں. پہلی لائن میں سارے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں. دوسری لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں ایسے وراء از نیو، ٹھیک ہے. تیسری لائن میں کیا ہے یار، ویسے تو کچھ بھی نہیں لگ رہا. لیما شاید ہم نے نہیں پڑھا، لیما فلیما، لیما شاید ہم نے نہیں پڑھا، باقی کچھ بھی نہیں. تو کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم اس قابل پہنچ گئے. ابھی تو ہمارا پہلا پارا ہے کہنے کو، اور جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ جاری ہے اور اسی میں ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ پوری دونوں آیات میں صرف ایک لفظ ہمیں نیا مل رہا ہے، ورا. یا اگر چلے دوسرا بھی سمجھ لیں، لیما، مطلب یہ 2 لفظ مل رہے ہیں. بہت بڑی کامیابی الحمدللہ. اوکے، سو آئیے ہم ان کو سمجھتے ہیں. پہلے ہم ریسیٹیشن کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم وهو الحق مصدقا لما معهم. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے. آئیے ان کو ہم دیکھتے ہیں اور ہماری روٹین کے مطابق سب سے پہلے ہم الفاظ کے اسٹرکچر کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. ترجمہ کریں. اور اذا جب، قیلا کہا جا ایکچولی کہا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ قالا سے آ گیا. ہم کہتے ہیں قالا اس نے کہا، قالا اس نے کہا، اس کا پیسو ہے قیلا، اس نے کہا گیا. لیکن اذا کے آنے کی وجہ سے اذ اور اذا جب آتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں ماضی کو مضارع اور کہیں مضارع کو ماضی کے معنوں میں لے جاتے ہیں. الگ کریں گے تو ہم وہی معنی پڑیں گے جو ایکچوئل ہے، لیکن جملے میں اس کی سینس لفظ وہی رہتا ہے، اسٹرکچر نہیں بدلتا، لیکن سینس کہیں مضارع سے ماضی میں چلی جاتی ہے، ماضی سے مضارع. تو یہ بیسیکلی پیسو ہے ماضی کا، لیکن اذا آنے کی وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں اور جب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اوکے، لہم ان کے لیے، یہ ان سے، رائٹ. آمنو تم سب ایمان لاؤ. یہ ہم نے I believe 9B تھا شاید ہمارے QC3 کا، اس میں ہم نے آمنا کا ٹیبل پڑھا تھا، اسلامہ پیٹرن سے آمنا اور پھر وہ آمنا بنا تھا. تو آمنا یؤمنو، آمن تو ایمان لا، آمنو تم سب ایمان. تو یہ آمنو امر کا جمع ہے، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ. بما سے جو، یا ساتھ جو، یعنی اس چیز پر جس کی بات ہو رہی ہے. کیا چیز؟ انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے. قرآن مجید. انزلہ از بیسیکلی اسلم، اسلامہ کے پیٹرن سے دس از مزید فی فیل انزلہ، ٹھیک ہے. انزلہ اور آگے جب چلتا ہے تو اسلامہ یسلم، انزلہ ینزل، اس کی 6 چابیاں بھی ابھی ہم دیکھیں گے. اس نے نازل کیا، پھر معلوم ہو گیا ہمیں کہ کس نے کیا؟ اللہ نے. تو ترجمہ ہو گیا اللہ نے.
नाजिल किया। उसके बाद है जी काला, कालू, उसके कालू, नाजी का दूसरा सीगा। ये इज़ा ही जो है ना वो इस पर भी उसका इतलाक हो रहा है। तो हम कैसे पढ़ते हैं इसको कि वो कहते हैं, ओके वो कहते हैं, ठीक है। वैसे हम इसको कहते हैं उन सब ने कहा, राइट। तो हम यहाँ सेंस इसको यही देंगे। उसके बाद आता है नुमिनु। नुमिनु कहाँ से आ रहा है, कौन बताएगा? आमना से आ रहा है। आमना युमिनु, युमिनु युमिनुना तुमिनु उमिनु तुमिनुना नुमिनु। इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब है आमना की टेबल से ये लफ्ज भी आ गया और ये भी आ गया, और ये भी अस्लमा के पैटर्न से है, अनज़ला भी अस्लमा के पैटर्न से। अस्लमा के पैटर्न पे तो ढेर सारे अफाल में मिलते हैं, मजीद फी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल अभी तक हमने अस्लमा के टेबल पे, राइट। उसके बाद है बिमा, उस पर जो उनज़िला नाजिल किया गया, ठीक है। तो ये जगह अनज़ला वाले टेबल से आ रहा है, उनज़िला, ठीक है। तो ये पैसिव है, राइट। अलैना हम पर, राइट। व और यकफुरूना, कफरा यकफुरू यकफुरूना, वो सब इनकार करते हैं या इनकार करेंगे। बिमा उससे जो, ये देखिए बिमा उस ऊपर भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। वराआ हु, जो इलावा है उसके, वराआ इलावा, इस चीज के इलावा, इस सेंस में आता है, जो इलावा है उसके, ओके। उसके बाद है वहुआ, और वो या हालांकि वो। जुमले के सेंस में कंटिन्यू करने के लिए हालांकि का लफ्ज आ रहा है, तो इसमें कोई परेशानी होना है। बहुत सी जगहों पे इस अंदाज में वह मानी दे रहा होता है, लेकिन इटसेल्फ वह का मतलब वो नहीं, ठीक है। और वो अगर हम लिख देंगे तो गलत, बिल्कुल कतन गलत नहीं होगा। अल हक्कु हक, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला, सद्दका अल्लामा से है, इसकी पीछे चाबियां हम देखेंगे, बिल्कुल मुसद्दिकुन मुसद्दकुन तस्दीकुन, ठीक है ना। मुअल्लिमुन मुअल्लमुन तालीम, ये बिल्कुल वही है। लिमा लिए जो, उसके लिए जो या उसकी जो, ठीक है। माहुम साथ है उसके, लेकिन जुमले में वो कह रहे हैं कि पास इज मोर, मतलब मच बेटर, तो आप उसको पास कह दें। लेकिन अगर आप साथ के साथ भी सेंस समझ रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू का की डिमांड है, हमें उसके मुताबिक सेट करते हुए बात की जो रूह है वो पास के साथ ज्यादा समझ आ रही है, ठीक है। लेकिन अरबों के हिसाब से इस जुमले में मा इज राइट, तो हम इस तरह से इसको पास या साथ दोनों मानने में पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। तो आइए हम जरा देखते हैं कि क्या कहा गया है। और जब कहा जाता है उनसे तुम ईमान लाओ उस पर जो नाजिल किया अल्लाह ने, तो वो कहते हैं हम ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया हम पर, और वो इनकार करते हैं उससे जो इसके अलावा है। तो बात समझ आ रही है ना। उनको ये उनकी अपनी किताब में कहा जा रहा है तौरात में कि तुम अल्लाह ने जो भेजा तुम्हें उस पर ईमान लाना, जिस चीज की तस्दीक हो रही है, जो नबी लेकर आ रहे हैं तुम्हें ईमान लाना है। अब चाहे वो ईसा अलैहि सलाम के थ्रू अल्लाह ने कुछ भेजा, चाहे वो मूसा अलैहि सलाम के थ्रू, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, उनका काम है अल्लाह की बात को मानना। वो खुद अपनी बाउंड्रीज इंसान कायम नहीं कर सकता कि मैंने ये किया तो मैंने यही करना है, जो रब कहेगा उसको मानना पड़ेगा। दिस इज जस्ट लाइक दैट। शैतान को कहा गया था कि तुम आदम को सजदा करो, तो उसने भी कहा कि मैं तो इतने सालों से इबादत करने वाला, मेरा ये मुकाम है और मैं आग से बनाऊं, आग इज मच बेटर, मट्टी से। उसने किसी भी सेंस में अपने आप को बेहतर समझा, वो अल्लाह से सवाल कर रहा है। तो अल्लाह को ये बात, हालांकि अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा ठीक है तुम ठीक कह रहे हो, अल्लाह ताला को ये गवारा नहीं है। अल्लाह 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 है, अल्लाह रब है, उसका हुक्म मानना जरूरी है। इंसान अपने अल्लाह के नजदीक तो सब मखलूक है, और अल्लाह की मर्जी किसको कौन सी जगह दी है। तो जो जिसके पास अथॉरिटी होती है मानने वाले का, गुलाम का, ये जिम्मेदारी है कि वो बात माने, ये नहीं कि हाँ जी मेरा तो ये मुकाम था तो आपने मुझे ये कहते। मुस्लिम का मतलब ही ये है ना कि आप सबमिशन, आपने मानना है, आपको जो रब ने कह दिया, आप अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं, तो उसकी इस दलील के बावजूद वो उसकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम्हें किसने, तुम क्या हो, तुम्हें मैंने बनाया जो भी तुम हो। तकब्बुर तो अल्लाह की चादर है और तुम तकब्बुर कर रहे हो। तो ये असल में रवैया कनेक्ट वहीं से कर रहा है, ये वही रवैया है, ठीक है। जब भी बनी इसराइल को कुरान पर ईमान लाने के लिए कहा जाता, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ तौरात पर ईमान लाते हैं और इसके सिवा तमाम चीजों का इनकार करते हैं। हमको कहा जा रहा है कि तुमको तो कुरान पर ईमान लाना चाहिए, क्योंकि तौरात में ही तुम जिसको कह रहे हो तुम मानते हो, उसमें बताया गया है कि मोहम्मद आने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपकी आमद और कुरान का नुज़ूल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तौरात सच्ची किताब है। दोनों किताबें एक दूसरे की तस्दीक कर रही हैं। कुरान में तौरात की तस्दीक है, तौरात में कुरान की कि वो आने वाली है किताब, और नबी उसकी तस्दीक है। तो मानने वाले का काम है वो दोनों को माने।
ہمارا کام ہے ہم اس بات کو مانیں کہ تورات سچی کتاب تھی. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی کہا جا رہا ہے. قرآن مجید تورات کے سچے ہونے کی تصدیق کرتا ہے, یعنی یہ بات کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے. یاد رکھیے کہ تورات سے مراد وہ اصل کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی, نہ کہ موجودہ تحریف شدہ کتاب. ٹھیک ہے, تو یعنی کوئی یہ کہے کہ ہاں جی آپ کو بھی کہا گیا تو اب آپ تورات کو مانیں, کیونکہ یہ بھی بات بالکل کلیئر ہے کہ اس میں تحریف کی جا چکی ہے. دس از دا ریزن کہ ہم اس کو مان نہیں سکتے. اگر وہ اصل حالت میں ہوتی, اس کی بھی تصدیق ہمیں ہو جاتی قرآن کے تھرو یا کسی بھی چیز کے تھرو, تو آف کورس ہم اس کو بھی مانتے ہیں. لیکن ہمیں بتایا گیا کہ وہ اپنے وقت تک کے لیے تھی, پھر اس پہ تحریف بھی ہوئی. اب جو آئے گا وہ قرآن کو ہی مانے گا, یہ فائنل ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو تحریف شدہ بھی آپ کی بائبل کی انجیل کی جو ہے اس میں جو فنڈامنٹلز ہیں وہ ایز اٹ از ہے, وہ نہیں چینج ہو سکتے. سبحان اللہ. اینڈ ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مطابق جو پروفیسیز تھی وہ ابھی اس میں بھی موجود ہے. بنی اسرائیل کا وتیرہ تھا کہ انہیں ریجیکٹ کرنا, ایگزیکٹلی, لیکن وہ تحریف شدہ ورژن میں بھی موجود ہے. علم ذرا اس کو ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیجیے. اوکے, الحمدللہ. آئیے آگے چلتے ہیں. سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. پھر فرمایا جا رہا ہے کہہ دیجیے سو کیوں تم قتل کرتے رہے نبیوں کو اللہ کے اس سے پہلے اگر تم ہو مومن. ٹھیک ہے, آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. قل کا مطلب ہے کہہ دیجیے, قالا یقولو قل QC2. ٹھیک ہے, فا لیما, فا کا مطلب ہے بس, لیما بھی جو ہے وہ کیوں کے معنی میں آتا ہے. اٹس اے نیو ورڈ فار اس. تقتلونا, قتل یقتلو یقتلونا, تقتلو اقتلو تقتلو, تم سب قتل کرتے ہو یا کرو گے. تو یہاں پر مطلب کرتے ہو, یہ تمہاری روٹین ہے. تمہاری روٹین میں ہے کہ تم نے مختلف وقتوں میں تم لوگوں نے جو ہے وہ نبیوں کو قتل کیا ہے. تو یہ اس سینس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ قتل کرتے رہے. ٹھیک ہے, یہ اصل میں مدارع ہے. انبیاء نبی کی جمع, جمع مکسر تکسیر والی جمع, نبیوں کو اللہ ہی اللہ کی. اللہ فرما رہے ہیں جو میری طرف سے خبر دینے والے آئے, نبی آئے تھے, تمہاری روٹین ہے کہ تم ان کو قتل کرتے رہے. ٹھیک ہے, من قبلو اس سے پہلے, یعنی ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ تمہارا یہ رویہ رہا ہے. ان اگر تم ہو مؤمنین, مومن, مومن کی جمع مؤمنون اور مؤمنین دونوں ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بڑا مومن کہہ رہے ہو. اگر تم مومن ہو تو پھر تم یہ کیا کرتے رہو, کیوں تم قتل کرتے رہو نبیوں کو. یہ تو اب آخری فائنل نبی آئے ہیں نا, تو اس کے لیے دلیلیں دینے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم تو نہیں مانیں گے. ہم مانتے ہیں نا, ہم تو رات کو مانتے ہیں, ہم آگے نہیں مانیں گے. اگر تم اتنے ہی تم سچے ہو تو تم نے پہلے کیوں نبیوں کو قتل کیا, یعنی تمہاری ہسٹری ہے کہ تم ماننے والے نہیں. انہوں نے تو آخری نبی کو بھی قتل دینے کی کوشش کی تھی, زہر تو انہوں نے نہیں تو کیا. اپنی حدود جو تم خود سے قائم کر رہے ہو نا, کہ ہاں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا, اس بیس پر تم اپنے آپ کو کامیاب اور نجات کا باعث ان سب چیزوں کو کہہ رہے ہو کہ اتنا کافی ہے, آگے تم نہیں مانتے, تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اصل میں یہ کہا جاتا ہے تمہیں اللہ کی بات ماننی ہے ہر زمانے میں, ہر وقت میں. اور تمہاری ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ تم پہلے بھی تو ہے تم مخلص نہیں تھے, تم کس بیس پہ کہتے ہو بیسیکلی. آئیے دیکھتے ہیں یہاں قرآن عقیدے کے بارے میں ان کے کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کر رہا ہے. انہوں نے پچھلے زمانوں میں اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کیا. اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کیا تمہارا ایمان کہتا ہے, تم جو تورات کی کتاب کی بات کر رہے ہو اس کی تو ہم کرتے ہیں نا, کیا تمہاری کتاب تمہارا ایمان یہ کہتا ہے کہ تم نبیوں کو قتل کرو یا بچڑے کی عبادت کرو. سچ تو یہ ہے کہ تم ظالموں میں سے, مومنین میں سے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ پھر اس شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا نبی سے کہ مجھ کو بتائیے ایمان کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر, ناٹ ایک کتاب, کتابوں پر, اس کے رسولوں پر
صرف موسیٰ علیہ السلام نے رسول جو اس نے بھیجے ہیں، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اس بات پر کہ ایمان لاؤ کہ تقدیر میں جو کچھ ہے برا یا اچھا سب اللہ کی طرف۔ تو ایمان کا مطلب ہے ساری بات، اپنی مرضی کی آدھی بات۔ ایمان کے معاملے، جیسے عمل کے معاملے میں کہتے ہیں کہ آپ ایک کسی چیز سے بغاوت نہیں کر سکتے، کہ آپ انٹینشنلی آپ ایک چیز کو تو چھوڑ ہی رہے ہو اور دوسری چیز کو آپ کہہ رہے ہو کافی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو ہر معاملے میں درست ہونے کی ضرورت ہے، اسی طرح ایمان میں بھی فنڈامنٹل حدیث جبریل آپ کے ایمان کو ڈیفائن کرتی ہے۔ حدیث جبریل اس کو کہا بھی جاتا ہے، اس خاص نام سے ہے یہ جبریل علیہ السلام نے سوال کیے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، جواب دیے تو انہوں نے آ کے سکھانے کی پوائنٹ آف ویو۔ ہاں بالکل بالکل۔ تو آپ ذرا علم پڑھ لیجیے۔ چلے جی، الحمدللہ، مسکرائیے، ہم آگے چلتے ہیں اور آخری آیت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو، یعنی معبود، ٹھیک ہے، اس کے بعد اور تم ظالم، تم کہتے ہو تم مومن ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تمہاری صحیح پوزیشن بتا رہے ہیں، تم تو ظالم ہو، اصل ظلم کرنے والے۔ اوکے، آئیے دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، لام زبر لا کا تین طرح کا استعمال ہے، کسی ون میں کرتے ایک سلائڈ میں، یہ تین معنوں میں آتا ہے نا۔ اوکے، کون کون سے تین معنی؟ ایک تو یہ سب سے عام، ایک البتہ، اور دوسرا سو دیٹ والے معنوں میں تھا نا، کیا بولیں گے اس کو؟ ضرور، ضرور، ہاں، لفی خسر، نہیں یہ تو وہ تو یہی ہے۔ تیسرا تھا لیدبر، سو دیٹ، تاکہ وہ اس ان معنوں میں تھا، لیدبروا، لیتذکر، تاکہ وہ غور کریں، تاکہ سو دیٹ کے معنوں میں تھا۔ اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ لام زبر لا، لام زبر لی کا استعمال اسم کے ساتھ ایک معنی دیتا ہے، دوسرا فعل کے ساتھ، تیسرا حرف کے ساتھ۔ اس کو یاد رکھنا انتہائی آسان ہے۔ جاءکم، جاؤ، وہ آیا، کم تمہارے پاس، ٹھیک ہے، کون آیا؟ موسیٰ، اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام آئے، بالبینات، بھی ساتھ، بسم اللہ، بھی البینات، نشانیاں، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ کھل واضح چیز سامنے آ جائے، یعنی دلیل کے معنوں میں بھی آتے ہیں، واضح طور پہ ایک چیز، لاجک ایک آپ کے سامنے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اوکے، ثم، پھر، اتخذتم، اتخذ، اتخذو، اتخذت، اتخذتم، اتخذتم، اتخذنا، اتخذتم، تم سب نے بنا لیا۔ یہ اختلف باب سے یہ بنتا ہے، اور یہ ہم نے QC3 میں پراپر اس کی پریکٹس، ہاں اس 4 ہے نا آپ کو، ہاں QC3 میں کی تھی۔ تو اختلف سے اتخذ، پھر تم سب نے بنا لیا العجل، بچڑے کو، یعنی بنا لیا سے مراد ہی یہ ہے کہ تم وہ مقام دے رہے ہو جو مطلب رب کی جگہ تم اس کو مان رہے ہو، معبود مان رہے ہو، ٹھیک ہے۔ من سے، بعدی بعد ہی، اس یعنی اس کے بعد ہی ہوا، فرام کے معنوں میں من ہے۔ وانتم، اور تم سب، ظالمون، ظالم کی جمع، ظالم کی جمع ہے، ظالمون، ظالمین، ہاں، اس کے بعد یعنی یہ جو معاملہ ہوا کہ وہ کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، اس کے بعد لیکن موسیٰ کے بعد نہیں، معاملے کی بات نہیں، موسیٰ کے بعد ہی، موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کھوے پہ، اس کے بعد یہ جو اس کے پیچھے، تو یہ انہی کے ساتھ، انہی کے بارے میں پروناؤن یوز ہو رہا ہے، انہی کی طرف اشارہ کیجیے، بالکل۔ اس کے بعد کیا؟ ظالمون، ظالم ہو۔ تو کہا جا رہا ہے جناب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے حق میں سب سے بڑے کیا تھے؟ اس کے باوجود اسی وقت اور ان کی موجودگی ہی میں اور فرعون سے نجات جیسا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کی بات کی، یعنی اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو چیزیں غیب ہیں، ایون ہماری آنکھوں سے تو اللہ خود بھی، اس کو بھی تم نے ماننا ہے، تمہارا ایمان یہی پر تو جج ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے لیے تو معاملہ یہ اور آسان تھا، کیونکہ ان کے سامنے تو جیسے وہ
हम बचपन में जादूगरों वाले ड्रामे देखते थे ना, उनकी असल जिंदगियों में जादू की तरह, एक मैजिक की तरह से चीजें हो रहे थे। वो मांग रहे हैं, नबी से कह रहे हैं और वो चीज सामने आ रही। इतने वाक्य आते हैं बनी इसराइल, तो इतनी खुली दलील आने के बावजूद भी बड़े बड़े चीजें हुई हैं। दरिया में से रास्ता बन जाना तो इंसानी अकल समझ नहीं पाती, तो यही सोचती है कि वो रबी कर सकते हैं साइंटिफिकली। उसके बाद भी जैसे डेजर्ट में जैसे उनके ऊपर हर वक्त बादशाह साया कर रहे हैं, खाना उनके सामने आ रहा है, ये तो एक लंबी, आप ये देखिए कि कुरान में लंबी लिस्ट है जो कुरान में बयान हुई है, कितनी चीजें हैं जो हम हदीस से भी अक्स करते हैं। अभी तो ये जो अल्लाह ने बताया, इसके अलावा भी न जाने क्या होगा। तो उसके बावजूद अल्लाह फरमा रहे हैं तुम्हारा रवैया तुम्हारे सामने, तुमने फिर बछड़े की इबादत शुरू कर दी, रब तुम्हें सब अता कर रहा है उसके बावजूद। तर्जमा कीजिए अल्लाह। She said I will try my little best. ऐसे जाएगा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलते हैं। तो तर्जुमा है, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ उस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो कहते हैं हम उस पर ईमान लाते हैं जो हम पर नाजिल किया गया है, और इनकार करते हैं उसका जो इसके अलावा है, हालांकि वो हक है उसकी तस्दीक करने वाला जो उनके पास है। ठीक है, आप कहते हैं सो क्यों तुम अल्लाह के नबियों को इससे पहले कत्ल करते रहे हो अगर तुम मोमिन हो। तो बेसिकली इन आयात में बता दिया कि तौरात जिसका दावा तुम करते हो कि तुम उसके मानने वाले, उसमें कुरान के बारे में सबूत मौजूद है, और कुरान में तुम्हारी उसी तौरात के बारे में सबूत मौजूद है। तो कोई जवाब बनता ही नहीं है कि तुम उसको ना मानो अगर तुम तौरात को मानने का दावा करें, ये बताया जाता है। लेकिन तुम फिर भी नहीं कर रहे, और ना सिर्फ ये बल्कि तुम्हारी हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि तुम्हारा जो रवैया रहा है, तुम असल में मोमिन कोई नहीं, तुम वही जालिम, ये अल्लाह फरमाते हैं। जैसे यहाँ है, और अलबत्ता मूसा तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आए, फिर तुमने इसके बाद बछड़े को माबूद बना लिया और तुम जालिम। तो ऑनलाइन सिस्टर्स में से हैंड रेज करें, आप में से कोई ये सबक पढ़ के सुना दें जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है। एनी ऑफ यू? सिस्टर सुंदर माइक ऑन करिए अपना। जी पढ़िए। और अलबत्ता मूसा यहूद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो सिर्फ इसी पर ईमान लाएंगे जो इन पर तौरात में नाजिल किया गया है। आगे पढ़िए। अल्लाह ताला इनके अपने दावे में सच्चे न होने को जाहिर करते हुए फरमा रहे हैं, अगर तुम तौरात के सच्चे मानने वाले हो तो तुम नबियों को कत्ल नहीं करते और ना ही किसी बछड़े की इबादत करते। बिल्कुल सही, थैंक यू सिस्टर, जज़ाकल्लाह खैर। तो हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि ऐ अल्लाह कुरान पर पुख्ता ईमान रखने में और इखलास के साथ उस पर अमल करने में हमारी मदद फरमा। हमें एहतिसाब करना है अपनी जिंदगियों का, इस रवैये को ज़हन में रखते हुए बेहतर प्लान करना है कि इंशाल्लाह हम हक बात को कबूल करेंगे, चाहे कोई भी कहने वाला कोई भी हो। अगर वो चीज़ वाज़ेह हो रही है तो हमारा खुद से नीयत से उसको मानेंगे, ठीक है, और दूसरों को इस बात की तरकीब भी देंगे इंशाल्लाह। कुछ अस्मा फाइल हमने देखने होते हैं, तो यहाँ अंबिया है, इसका वाहिद है नबी, बिल्कुल दुरुस्त। इसी तरह हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है बैयिना, इसका वाहिद है बैयिना। ये मुस्लिमातुन वाली जमा देख रहे हैं, ऊपर अंबिया वाली जो है वो जमा तकसीर, जमा मुकस्सर है। इसी तरह इज्ल का जमा हम कह सकते हैं उजूल, उजूल आइन पे पेश के साथ है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह QC1 की सेहतमंद अफ़ाल के मुताबिक अगर हम नजर डालें तो हमें एक मिल रहा है नसरा यंसुरु, उनसुर से कफरा, यहाँ पर आ जाता है कफरा यकफुरु उकफुर। उसी तरह का कतला, चलिए कतला पढ़ते हैं, कतला यकतुलु उक्तुलन, ये नसरा के पैटर्न पे सेहतमंद फेल है। इसी तरह ज़ालिमून में आप हम देख रहे हैं ये भी है, ठीक है, ज़लमा यस्लिम, ठीक है, खैर उसको उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया, इट्स ओके। QC2 के हिसाब से अगर हम जी QC2 के हवाले से अगर हम देखें थोड़े से, तो हमें कौन से मिलते हैं? हमें सबसे पहले मिल रहा है जी काला, काला से पैसिव किया हुआ है, ठीक है, तो उसकी हम जी चाबी हमने नहीं दी बिकॉज़ काला का जो तकरीबन हर लेसन में आता है, इट्स ओके। वो कह रहे हैं कि हक का ये कहाँ से आ रहा है? गल्ला दिल्लू दिल्ला, ठीक है, और ये हक कहाँ पर है? इंसाउल, छह चाबियों में हक की पोजीशन मज़दर है एग्जैक्टली, हक्कुन या फिर अल हक्कु, अलिफ लाम है ना, तो आखिरी हरकत में से एक है, इसको पढ़ लेते हैं। हक्का यहीकु हिक्का, हकीकुन कोई नहीं और हक्कुन, ये वो हक हुआ, वो साबित हुआ, वो साबित होता है,
साबित हो इन तरह के इस तरह के मानों में आए। आगे हम देखते हैं जी काना, ये वही कुंतुम जो है काला यकूलू वाला काना यकूल, वहां से कुंतुम आ रहे हैं, वेरी सिंपल। जा देख लेते हैं, ज्यादा यजीदु जिद से जा यजीदु जिद जाइन मजीबुन बशीर। इसका टेबल बहुत दफा रिवाइज हुआ है, इसकी कौन सा वाला टेबल कंसीडर करो? कमजोर एंड हमजा, कमजोर भी और हमजा, क्योंकि इसके रूट लेटर्स में या भी है हमजा, बिल्कुल सही हो गया। अब हम अगर QC3 पे नजर डालें, मजीद फी अफाल माय फेवरेट, तो उसमें हम देखते हैं जरा, एक तो आमना, ये देखिए यहाँ बताया जा रहा है आमिनू अमर में आ रहा है, और यहाँ बड़ा नुमिनू ये आमना से आ रहा है, हमने QC3 में पढ़ा था, अभी इसकी बात होगी। इसी तरह अनजला, तो यहाँ मुसद्दिकन, ये कह रहे हैं ये सारे मजीद हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, आमना वाले में क्या था? आमना युमिनु आमिन, मुमिनुन मुमिनुन ईमान। इसी तरह अनजला में अनजला युजिलु अनजिल मुनजिलुन मुनजिलुन इंजाल इस्लामुन इंजाल, ठीक है। और यहाँ पर वो दे रहे हैं ये, क्योंकि ना रिवाइज हुए हैं पिछले लेसन से, तो उन्होंने यहाँ 6 चाबी में नहीं दिए, बुक में शायद होंगे कुछ में भी। और यहाँ सदका, वैसे तो सदका भी एक आध बार हमने रिवाइज किया है। अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम से सदका बिल्कुल, देखें तालीमुन तस्दीकुन, एग्जैक्टली अल्लमा की तरह। तो मजीद फी में ये था सेहतमंद, है ना। और हमजा वाला मजीद फी में इख्तलफा यख्तलिफु, इससे हमने पढ़ा था इख्तलिफ, तो हमने पढ़ा था इत्तखज़ा यत्तखिज़ु इत्तखिज़ मुत्तखिज़ुन मुत्तखिज़ुन और इख्तिलाफ इत्तिखाज़ुन। ये दोनों इख्तलाफ और इत्तखज़ा की प्रॉपर टेबल हमने QC3 में बनाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, और चाय से पहले तो आप में से कोई बात करना चाहे तो कर सकता है यहाँ पे। और इसमें एक ही आयत पढ़ना है, आइए इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। कोर्स 4 सूरह बकरा आयत नंबर 93, एक ही आयत हम देखेंगे अभी, सफा नंबर 13 का आखिरी इशारा, यानी अल्लाह की करम से हम सफा नंबर 13 को मुकम्मल करने जा रहे हैं अभी थोड़ी सी देर में। कोर्स 2, कोर्स 3 एंड कोर्स 4 जो अभी जारी है। दाएं हाथ पर हम के 5 सफात को समझते हैं, सफा नंबर 11, 12 और 13 पर अब है, इसको हम पूरा भी करते हैं जस्ट जी। तो सफा नंबर 13 क्योंकि जारी है, तो उसके 4 इशारे बताइए। किताब आने पर इनकार, पूरा सौदा सफर का, ईमान लाओ, मिसाक दूर उठाकर। और इनको अगर हम एक दफा फिर से दोहरा लें, यकीनन हमारी ऑनलाइन सिस्टर्स भी साथ साथ दोहराई कर रही हैं जहाँ दोहराई का कहा जाता है। और शॉर्ट वर्ड्स में आप कह सकते हैं इनकार, बुरा सौदा, ईमान और दूर। किताब का इनकार बुरा सौदा है, ईमान लाओ या इस अंदाज में भी आप पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी आयत मुबारक हम देखते हैं। अल्लाह ताला ने इसकी किताब के हुकूक अदा करने के बारे में बड़ी अहमियत दी है। गुनाह के बाद तौबा ना करना दूसरे गुनाहों पर उभारता है। अल्लाह अकबर। एक तो है ना, इंसान कहते हैं खताओं का पुतला है, गलतियां होती हैं, इंसान के परफेक्ट तो हो नहीं सकता, लेकिन उस चीज का कम से कम गिल्ट होना, एहसास होना और फिर माफी मांगना, ये इंसान को एक्चुअली अल्लाह का पसंदीदा बनाता है कि इंसान बार बार मेरी तरफ पलट रहा है, एहसास तो कर रहा है, ठीक है। और फिर इंसान डेफिनेटली अगली गुनाह में भी उस तरह से नहीं जा रहा होता, लेकिन अगर वो उसको पिछली चीजों पे एहसास ही नहीं है तो वह भी नहीं कर रहा, इसका मतलब है वो गुनाहों की तरफ उसको नेचुरली तरगीब मिल रही है, दिल के साथ लगता जाता है। हाँ जी बिल्कुल, सुनना अमल की जानिब पहला करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनते हैं एक दूसरे को, दीन की बात को, इसलिए कुरान को और उसके मानी और मफहूम को तवज्जो से सुनना चाहिए ताकि हम उसे सीख कर अल्लाह के अहकाम की इताअत करें इंशाअल्लाह। अब आप देख लें कितने लफ्ज़ हमें नहीं सीखते हैं, कोई भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑनलाइन सिस्टर्स यकीनन आप भी देख रहे हैं, एक भी नया लफ्ज़ नहीं है, वो कह रहे हैं दिस इज नॉट अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप देखिए हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं QC 1, 2, 3 और 4 में यहाँ तक कि ये सारे लफ्ज़ हम समझ चुके हैं। अगर वो अफ़आल है तो भी उनको प्रॉपर समझ चुके हैं, अगर वो इसम है या हर्फ है तो भी हम उनको पढ़ चुके हैं।
کتنی بڑی بات ہے. تو یہ دس از اچیومنٹ. کس انداز میں ہم ڈسپلن سے سیکھ رہے ہیں, آگے چل رہے ہیں. تو آئیے ہم اس کو ریسائٹ کر لیتے ہیں, پھر اس کو سمجھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. اللہ فرماتے ہیں اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد یعنی وعدہ اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو, پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو. انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اللہ, اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچڑا. یعنی اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا دل انہی چیزوں کی محبت میں پڑا رہے گا, تم انہی کے گھیرے میں رہو گے, تم نکل ہی نہیں سکتے. یہ وہی بات کہ دلوں کو تالے پڑے ہیں جو ہم کہتے ہیں ان کے کفر کے سبب. آئیے پہلے ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں. اچھا اگلا حصہ بھی ابھی پڑھ لیتے ہیں. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کا تمہارا ایمان اگر تم ہو مومن. یہ کیا کیسی بری چیز ہے تمہارے اندر جو تمہیں یہ سب کرنے کا تمہیں ترغیب دے رہی ہو, تم یہ کر رہے ہو اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے, یعنی تم کہتے تو اپنے آپ کو ایمان والا ہو نا, اس کے باوجود تم یہ کر رہے ہو, تو کیا ہی بری بات ہے جو تم کر رہے ہو. ترجمہ کیجئے. اور جب اخذنا ہم نے, یہ نصرہ ینصر سے اخذا یاخذ خذ. ٹھیک ہے, تو اخذا اخذو اخذتا اخذتو اخذتم اخذنا ہم نے لیا. بالکل سمپل حمزہ والا ہے یہ. میثاقکم, میثاق تم سے, عہد پختہ عہد کو یعنی باقاعدہ ڈسپلن کے ساتھ پورا عہد لیا جاتا ہے جس کو ہم معاہدہ باقاعدہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ میثاق ہے, پختہ عہد. اور رفعنا بلند کیا ہم نے. یہ فتح یفتح سے رفع یرفع ایگزیکٹلی اس کی ہم 6 چابیاں بھی دیکھیں گے. اور ہم نے بلند کیا فوقا اوپر, تم تمہارے. یہ فوقا اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے؟ اوپر اسم ہے. ٹھیک ہے, اب ٹائپس ہم آگے جا کے سمجھیں گے. اصل میں یہ جو ہوتا ہے نا اوپر نیچے دائیں بائیں کسی چیز کی پوزیشن بھی بتا رہے ہوتے ہیں, یہ اسم ہوتے ہیں. ہاں, ان کو ہم گریجولی کسی فور میں بھی آپ کئی ایسی چیزیں اس کی ہم سمجھ رہے ہیں, گریجولی یہ پراپر کانسیپٹس بھی آئیں گے. لیکن اوپر نیچے دائیں بائیں والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس ہیں. ہاں, تو الطور کیا ہے, کوئی طور کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد خذو, یہ یہی سے سسٹرز اخذا سے, اخذا یاخذو خذ, خذو تم سب پکڑو, ما جو آتینا آتینا ہم نے دیا. ٹھیک ہے, اوکے اس کی پیچھے چابیاں دیکھتے ہیں. کم تم سب کو, تمہیں بی قوت, بی اور قوت, قوت اردو میں بھی ہم کہتے ہیں قوت مضبوطی. ٹھیک ہے, مضبوطی کے ساتھ, مضبوطی سے. وا اور اسمعوا تم سب سنو. الحمدللہ. تو پھر فرمایا جا رہا ہے قالو, قالا قالو, ان سب نے کہا سمعنا ہم نے سنا. سمع سمع سمیتا سمیت سمیتم سمعنا ہم سب نے سن لیا. وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی. کیا انداز ہے بیان کا, یعنی انسان کے ڈفرنٹ انداز میں چل رہا ہوتا ہے نا. کچھ تو کہہ رہے تھے نہیں ہم کریں گے, کوشش کرتے ہیں نہیں ہو پاتا, چلو وہ تو کہیں نہ کہیں
खुलूस नीयत से कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि अल्लाह जानता है कि चलो ईमान की कमजोरी है, वो कोशिश कर रहे हैं। एक वो रवैया होता है जिसमें इंसान अपनी मर्जी का कि हम ये कर लेंगे वो नहीं करेंगे। एक होता है कि वो कह रहे हैं कि हमें पता है लेकिन हम ही मानेंगे। तो आप ये देखिए उसका बगावत के जिक्र में अभी और किस अंदाज में ये कहा गया, हम इसको देखेंगे डिटेल में। ओके, वो ऐसा ही ना, और हमने नाफरमानी की। वो उशरिबू सॉरी, ये उशरिबू जो है करना होता है ना सब, पिला दिया गया। डाल देना मतलब किसी को भर देना। हाँ, ये असल में हाँ ये उशरिबू बेसिकली आ रहा है पैसिव से, ठीक है, इसकी चीज अभी ये पैसिव से आ रहा है। इतना ज्यादा डालने को रच बस गया। हाँ, रच टू द ब्रेन, अंदर जैसे कहते हैं किसी के अंदर चीज को रच बस गया। रच बस गया। हाँ, तो रचा दिया गया, एग्जैक्ट वही लिखा, ठीक है। ओके, तो अच्छा जी, फी में कुलूबिहिम, उनके दिल, कल्ब से कुलूब है दिलों, अल इजल बछड़ा, अल्लाह, वो चाहे बछड़ा हो या आज के जमाने के बातिल माबूद हो, जिनको इंसान जुबान से शायद खुदा नहीं कह रहा होता लेकिन अपने अमल से साबित कर रहा होता है कि माननी उन्हीं की है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि फिर रब को भी नहीं चाहिए ऐसा बंदा। हाँ, और तुम्हारे दिलों में उन्हीं को रचा दिया जाता है, उन्हीं की मोहब्बत डाल दी जाती है, उन्हीं झूठे खुदाओं के पीछे तुम जिंदगी गुजारते हो। तो यहाँ पर उसी वही झूठे खुदा यानी बछड़ा, ठीक है, बेकुफरीहिम, उनके कुफर की वजह से, क्योंकि वो इनकार करते हैं मेरे हुक्म को, तो मैं कहता हूँ ठीक है, तुम्हारे दिल में उन्हीं की मोहब्बत रहेगी, तो ये सजा है अल्लाह की तरफ से। यानी तो कहते हैं तौफीक ही ले ली जाती है फिर सही होने की, अल्लाह ताला महफूज रखे। जी जनाब, तो आप जो है हम इसको देखते हैं। कुल का मतलब है जी, कह दीजिए बिसमा, बिसा बुरी चीज, ठीक है। माँ जो यामुरु, अमरा यामुरु, वो हुक्म देता है। हमारा ये एक्सक्यूज टू में हमने पढ़ा था, नसर और यनसुन से हमजा वाला फेल है। वो हुक्म देता है, ठीक है, कुम तुम्हें, भी इसका, ईमानुकुम तुम्हारा ईमान तुम्हें यही करने का दर्श दे रहा है, तुम्हें ये बताता है तुम्हारा ईमान तुम ये करो। क्या ही बुरी चीज है कि तुम्हारा जिस ईमान का तुम दावा कर रहे हो कि तुम ईमान वाले हो अल्लाह के नबी पर और तौरात पर, तो क्या अल्लाह का नबी और तौरात ने तुम्हें, तुम्हारे ईमान ने यही तुम्हें कहा है कि तुम ये करो, ठीक है। इस अंदाज में अल्लाह ताला बात कर रहे हैं। इन कुंतुम, अगर तुम हो मोमिनीन मोमिन, जैसे वो एक तंजिया एक बात कही जाती है ना किसी से, वो अंदाज है अल्लाह की तरफ से, यही तुम्हें सिखाया है तुम्हारा ईमान, हमारा ईमान ये है तुम्हारा ईमान, जो तुम कह रहे हो कि नहीं जी हम तो बड़े ईमान वाले हैं। बनी इस्राइल तो रात को कबूल करने में सुस्त और गैर संजीदा थे, उन्हें डराने की खातिर अल्लाह ताला ने ऊपर कोई धूप उठाया था, ये वाकया भी आसमान में देखा था, ठीक है। और ये कोई उन पर ईमान को मुसल्लत करने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था कि वो पहले ही हजरत मूसा पे ईमान ला चुके थे, ठीक है। अब उनकी भलाई के लिए अल्लाह ताला ने उन पर अपनी ताकत का एक हल्का सा मुजाहरा किया, क्योंकि उन्हें डिफरेंट तरीके से डील किया जाता रहा है, ठीक है, ताकि वो अपने अहद को याद रखें, ठीक है। झंझोड़ा जाता है ना इंसान को, तो एक्चुअली उन पर ला खड़ा किया गया कि अब तुम पर गिरेगा ही, समझ जाओ, ठीक है। जो कुछ हमने तुमको दिया है उसे मजबूती से पकड़ो, उन्हें तौरात को मजबूती से पकड़ने यानी उसके हुकूक अदा करने, तिलावत करने, समझने, अमल करने और तब्लीग का हुक्म दिया गया था। यही कुछ फंडामेंट जो अपनी किताब के बारे में सबको दिया गया, एग्जैक्टली फंडामेंटल्स। बिल्कुल यही बात हमको कुरान मजीद के ताल्लुक से कही गई कि आप भी समझें, अमल करें, दूसरों को बताएं, यही उनको कहा गया था। बनी इस्राइल पर कोई दूर को उठाने से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब पर अमल करने को बड़ी अहमियत दी, कि जो किताब मैं भेज रहा हूँ उस पर अमल करोगे, तुम जो भी किताब मैंने तुम्हें तुम्हारे नबी के थ्रू दी है। कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करके तसव्वुर करें कि वो मंजर कितना भयानक होगा। इतना सब होने के बावजूद भी बनी इस्राइल ने जवाब दिया कि हमने सुना और हम नहीं माना। वो ऐसा रवैया खरीद का मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बरकरार करके साथ ये अब्दुल भट्टी साहब यही सोचते हैं उनका सब्र था। हम मतलब अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि वो साबिर नबी थे, लेकिन जिस नबी को ये कौम मिली है, ओह माय गॉड, जिसको कुरान में इतनी आयत अल्लाह ने दी थी, ऐसी कौम में थी तो मतलब अल्लाह के सामने आ जाती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का ज़र्फ कितना बोझ था, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़र्फ, नबियों का ज़र्फ देखिए क्या उस दौर में जिंदगियां भी लंबी लंबी होती। बिल्कुल, एक तो हमारी तो 60-70 साल की वो भी गनीमत होती है, वो भी गनीमत अब तो 500 साल 1000 साल की ऐसे रवैये नबियों को, जो नबी सब कुछ उन्हें करके दे रहे हैं, पेश कर रहे हैं कि अब तुम ईमान तो अपना पूरा करो ना, पक्का वाला रखो,
उसके बावजूद अगर हमने सुना और हमने नाफरमानी की, वो कितने नाफरमान और सरकश थे। अस्तगफिरुल्लाह। ये तो अल्लाह का रहमो करम था कि उसने उन्हें बर्बाद नहीं किया। और वो क्या कहते हैं, आज अगर उस कौम से अपने आप दावा करते हैं कि हम उस कौम से हैं, उस नस्ल से हैं, उस नस्ल की बेस पे वो कहते हैं हम बख्शे हुए लोग, और हम ही हैं सिर्फ जो बख्शे हुए हैं। ये भी कहते हैं, ये कहते हैं हम बख्शे हुए हैं, इसका पक्का सर्टिफिकेट हमारे पास है, और फिर कहते हैं सिर्फ हम ही बख्शे हुए हैं और दूसरे में कोई। ये भी कहते हैं, दूसरों को तो इंसान ही नहीं मानते, गुलाम्स कहते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रहमत करम इतना ही बहुत था कि तुम्हें फिर भी बर्बाद किया गया, कि नस्ल को जारी रखा गया। ठीक है, और ये अल्लाह की मर्जी थी यकीनन, वरना किसके पास इसकी जो है वो अल्लाह की मर्जी ना हो तो किसकी जो है मजाल है। इसके दूसरे मानी ये है कि उनका सबीना कहना, हम ये सिर्फ उनकी जुबान पर था मगर उनके दिलों में ऐसा ही ना था। तो अल्लाह को तो हम जाहिर बातिन से एक जैसे नजर आते हैं ना, वो तो हम एक दूसरे के सामने इतने वो अच्छे होते हैं कि हम कहते नहीं वो कितना अच्छा है, लेकिन अल्लाह तो हमें अंदर से देख रहा है। अल्लाह के लिए तो जो जुबान पे है, जो अंदर है, वो सब है। तो अल्लाह फरमाते हैं जुबान तुम्हारी कह रही है कि अगर बिलफर्ज कह भी रही है कि हम मानेंगे, दिल तुम्हारा कह रहा है नहीं मानेंगे। अल्लाह कहते हैं मैं तो वो देख रहा हूँ, जो तुम्हारा दिल कहता है मैं वो भी देख रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि इस अंदाज में भी हम इस बात को समझ सकते हैं। यही वो चीज थी जो उनके कामों से जाहिर हो रही थी। क्या हम भी इस तरह के काम कर रहे हैं? ये हमें अपने आप को आईना दिखाना चाहिए। हम कुरान पर ईमान रखने का दावा तो करते हैं, लेकिन हमारे मुआशी मामलात, हम कैसे पैसा कमा रहे हैं, सबसे बड़ा काम। हम अर्न कर रहे हैं पैसा, या जो भी रिसोर्सेज या जो चीजें हम दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे आए, ये बहुत बड़ा हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही होता है, क्योंकि हमारा फोकस तो सारा यही होता है, इस दुनिया के लिए क्या करना है, क्या करना है। फिर मुआशरती रसूम व रिवाज, हमारे मामलात, रहन सहन, उसकी चीजें वो कैसे हैं, ये हमें देखनी होगी। क्या हम उनमें भी इस्लाम पे अमल करते हैं? ये चीजें हमारी हकीकत बताती हैं। उन्हें पिला दी गई, रचा दी गई उनके अंदर। किसने उन्हें पिलाया? अल्लाह ने। ठीक है, कहाँ था ये रस? यहाँ। बछड़े की मोहब्बत उन्हें उनके अंदर रच बस गई, तो ये अल्लाह ने कर दी। यहाँ हमें ये तालीम दी गई है कि अल्लाह ताला की अजमत व एहतराम को मलहूज रखा जाए और सजा को बराह रास्त अल्लाह की जानिब मंसूब न किया जाए। ठीक है, कोर्स ऐसे होते हैं, क्योंकि वो बात कही जाती है ना, कॉज एंड इफेक्ट बता रहे हैं ना, क्योंकि ये वजह थी जिसकी वजह से फिर अल्लाह ने एज अ रिएक्शन उनके दिल सील कर दिया। क्योंकि कितनी जगह पे अल्लाह ताला बताते हैं तुम्हें इस तरह से समझाया जा रहा है, तुम अभी भी बदल जाओ, तुम तौबा करो, कुरान बताते हैं। लेकिन कितनी जगह पे फिर वो ये बताता है कि लेकिन वरना तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। और फिर ये कितनी जगहों पे कुरान में कहा जाता है कि अल्लाह जालिम नहीं है, इसलिए हो रहा है, इस चीज के सबब के तुम ये कर रहे हो, तो कसूरवार तुम खुद हो जो ये हो रहा है। वो रहमान रहीम तो है, लेकिन इसका मतलब ये हदीस नहीं है कि वो तुम्हें सजा ना दे क्योंकि वो रहमान है। वो इंसाफ करने वाला भी तो है। एक शख्स ने सेक्रीफाइसेस किए हैं, एक शख्स ने अपने नफ्स को पीछे रख के अल्लाह की मानी है, वो क़यामत के दिन कहेगा कि मेरा हिसाब उस जैसा कैसे हो सकता है। इसलिए इंसाफ का तकाजा है। वो रहमान और रहीम होने के बावजूद जिसको चाहेगा सजा देगा, जिसकी बनती हो। हाँ, जिसको चाहे माफ कर दे, वो भी रब जानते हैं मामलात दिलों के। और मतलब हम में से कोई किसी को जज नहीं कर सकता, हमारे हालात मुख्तलिफ हैं, हमें नहीं पता हम जो कर रहे हैं हम में से कौन कितना एक्सेप्टेबल होता है अल्लाह के नज़दीक को, कौन नहीं होता, और कौन से बड़े अमल की को भी ज़ाया कर दिया जाए और किसी के छोटे अमल को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सब रब के हाथ में है, लेकिन वो कहता है कि मैं इंसाफ करने वाला हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। तो बात ये है कि जो अता होती है, ये अगर डिटेल पढ़ते हैं तो दिल इस बात को मानता भी, सिर्फ कहने की हद तक नहीं है कि जो अता है उसको हमेशा अल्लाह से मंसूब किया जाए, लेकिन जो सजा है वो आपकी अपनी कसूर की वजह से। जब आप डिटेल पढ़ते हो ना अल्लाह के बारे में, अल्लाह की सिफात और हिस्ट्री के, अल्लाह का रवैया क्या रहा है, तो ये बात दिल तस्लीम करता है। लेकिन अभी हमारा टीचर पढ़ा हदीस जिब्राइल के लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा है कि जो तकदीर है अच्छा है अच्छी या बुरी है रब की तरफ से, रब की तरफ से। ये कॉन्सेप्ट मुझे कंफ्यूज इसलिए बिगड़ता है, कुरान पाक में आगे भी जाके ऊपर नीचे एक दो आयतों में ऐसे आते हैं जब क्या बात है, सहाबा पूछते हैं कि क्या ये हमारे गुनाह की तरफ से, वो अल्लाह ताला पहले आयत में आता है कि वो अल्लाह की तरफ से, तो अच्छा है। बाद में आता है दो आयतें छोड़ के तुम ये करते हो तो ये तुम्हारे ही अमाल की वजह से तुम्हारे साथ ऐसे। पता है क्या है, कितने ऐसे मामलात हैं, जैसे वक्त की बात होती है ना, तो कई जगहों पे इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये पास्ट की बात हो रही है कहीं, और कई जगहों पे ग्रामेटिकली समझाए जाते हैं। और कितनी ही ऐसी चीजें हैं जो इस चीज में जाके हमारा ज़हन क्लियर हो जाता है। जब इंसान सवाल करता है ना, तो उसको ये सीनियर्स बताते हैं कि अल्लाह ताला वक्त की कैद से बाहर। ये इतनी सी बात हम पूरी जिंदगी लगाते हैं हमारी समझ में आने वाली। अल्लाह के लिए कुछ भी माजी नहीं है,
कुछ भी हाल और मजहब भी नहीं है, जस्ट गेट द पॉइंट। मतलब ये बात इंसानी अकल इतनी महफूज है मेरी और आपकी कि ये बात एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि हमारी ज़हन लिमिटेड है। हाउ कैन इट पॉसिबल? हम कहते हैं अल्लाह को अगर पता है कि ये होना है तो फिर ऐसा क्यों? अल्लाह को तो पहले से पता था, फिर मुझे सजा क्यों? ये सारी चीजें ज़हन में आती है तकदीर का मामला भी। फिर उसमें कहा जाता है अभी तक तुम हर चीज नहीं समझते, बट समझाया भी जाता है कि वो चीज है कि आपके इख्तियार में दे दी जाती है वक्ती तौर पर, होती रब के इख्तियार में। बिल्कुल ऐसे ही छोटी सी एग्जाम्पल ये होती है, जैसे हम क्लासरूम में होते हैं ना, तो टीचर के इख्तियार में है कि वो हमें पेपर हो रहा है, हमसे पेपर छीन के फाड़ दे, लेकिन वो हमें टाइम देता है। हालांकि उस वक्त टीचर के हाथ में होते हैं, जो इन्विजिलेटर होता है कई दफा वो पेपर कैंसिल कर देते हैं, कई स्टूडेंट्स रो रहे होते हैं कि हमारा कसूर नहीं था, उसने गलत किया। और लेकिन इन्विजिलेटर की बात मानी जाती है, अगर वो प्रूव कर दे चीटिंग कर रहा था, मैंने कैंसिल किया, तो कैंसिल हो जाता है। तो इसी तरह या हम अपने घर में रहते हैं, हमारे माँ बाप का घर है, हमें कहते हैं हम बाउंड होते हैं, ठीक है, कि हमने उनकी बात माननी है, लेकिन हमें आजादी भी होती है। यानी वो चाहे तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। ये तो छोटी मिसाल है इंसानों की। रब के साथ जो रिश्ता है ना, वो ना समझ में आने का, तो ये इसी में जिंदगी गुजर जाएगी। वो कहते हैं ना, वो शायराना चीजों में भी और किताबों में हम पढ़ते हैं कि वो रब ही क्या जो समझ में आ जाए। तो असल बात ये है। और आखिर में ना मेरे फादर, हम यही पॉइंट जब डिस्कस करते हैं ना, यही पॉइंट सबसे ज्यादा डिस्कस होता है। तो मेरे फादर कहते हैं, कभी आपने देखा किसी पुलिस ऑफिसर को जो किसी को अरेस्ट करता है, वो हर अपनी जब वो जूते लगाता है ना उसको, वो कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर या जो भी किसी को जेल में बंद करके जब उसको जूते लगाते हैं, तो वो पाबंद नहीं होते कि आप जूते पे बताएंगे तुम्हें क्यों लगाया। और वहां जब गए हुए इंसान को पुलिस ऑफिसर की बात माननी पड़ती है। ट्रैफिक रूल्स में भी आपको कहा जाता है कि मानो उनके साथ अगर तुम जरा से भी टेढ़े हो गए तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। वो तो सिर्फ एक पोजीशन है जो दी गई है, ये रब है। और रब और हमारे दरमियान इतना फासला है, उस हिसाब से देखा जाए। वो अल्लाह की मोहब्बत तो अल्लाह की हिम्मत है कि वो करीब है, वरना इतना फासला है बंदे और माबूद में कि हम इस चीज को समझ कैसे सकते हैं। इतनी लिमिटेड सोच और वो इतना बड़ा रब। तो ये बड़ी लंबी जो है ना ये कहानी है, ठीक है। आगे चलते हैं क्योंकि हमें चाय भी पीनी है। ऑलराइट, जब इंसान पानी पीता है तो ये पानी उसके खून की नालियों में फैल जाता है। उनको बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी, यानी उनके अंदर बछड़े की मोहब्बत इतनी रच बस गई थी कि कई मोजज़ात को देखने के बाद भी उन्होंने एक बछड़े की ही परस्तिश। थोड़े टाइम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम गए और वो उन्होंने उसको महबूब बना, ठीक है। तो चुनाचे बनी इस्राइल को सजा दी गई कि उन्होंने उनके कुफर की वजह से बछड़े की मोहब्बत में उन्हें छोड़ दिया गया। इसमें एक अहम सबक ये है कि एक गुनाह दूसरे गुनाह की तरफ ले जाता है, जिसका नतीजा अल्लाह की जानिब से मिलने वाली सजा पर लगता है। हजरत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के दरमियान मक्का और मदीना के बीच वाक़ई एक पानी वाली जगह जिसे खम कहते हैं खुतबा देने के लिए खड़े हुए। आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान फरमाई और वाज़ो नसीहत करने के बाद फरमाया, है लोगों मैं भी इंसान हूँ, करीब है कि मेरे परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता आए और मैं उसकी दावत को कबूल करूं। अलबत्ता मैं तुम्हें दो बड़ी चीजें छोड़े जाता हूँ। पहले तो अल्लाह की किताब, इसमें हिदायत है और नूर है, तो अल्लाह की किताब को थामे रहो और बस पकड़े रहो। गर्ज ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब की जानिब खूब रगबत दिलाई। तो ये हदीस जो है मजीद किताब की वैल्यू और किताब को पे अमल करना कितना जरूरी है इंसान के लिए, इसको बता रही है। ठीक है जी, कह दीजिए क्या ही बुरा है जो अल्लाह जी। और जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया और तुम्हारे ऊपर कोई धूप बुलंद किया और कहा जो हमने तुम्हें दिया है मस्ती से पकड़ो और सुनो, तो वो बोले हमने सुना और नाफरमानी की और उनके दिलों में बछड़ा रचा दिया गया उनके कुफर की वजह से, इस इनकार की वजह से, ठीक है। कह दे क्या ही बुरा है जिसका तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारा ईमान, क्या ही बुरी चीज है अगर तुम मोमिन हो, ठीक है। एक तुम मोमिन भी कहलाते हो और तुम कर ये रहे हो, इनकार कर रहे हो, मतलब मोमिन किस चीज के हो। ओके जी, हमारी ऑनलाइन सिस्टर्स में से कौन सबक पढ़ेगा, हैंड रेज कीजिए।
एनी ऑफ यू ऑनलाइन सिस्टर्स में से कोई सबक पढ़ना चाहेगा तो वो हैंड रेज कर सकता है. सिस्टर हुमैरा वही माइक ऑन करनी जल्दी से. जी. अल्लाह ताला ने अपनी किताब के हुकूक अदा करने पर बहुत अहमियत दी है. गुनाह के बाद तौबा ना करना दूसरे गुनाहों पर उभारता है. सुनना अमल की जानिब पहला कदम है. इसलिए कुरान को और उसके मायने व मफहूम को तवज्जो से सुनना चाहिए ताकि हम उसे सीख कर अल्लाह के अहकाम की इताअत करें. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सिस्टर, जज़ाकल्लाह खैर. तो बात सिंपल सी ये समझ आती है कि अगर वो रहमान अपनी सिफात में रहमान और रहीम ना रखता तो हम उसका क्या बिगाड़ते. बात यहाँ खत्म होती है ना. ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने अपनी सारी सिफात में पहले रहमान रहीम रखा है. ये मैं आज सुबह ही जब मैं ऑफिस के लिए तैयार होती तो मैं साथ नुमान अली खान के प्रोग्राम में सुनती थी. मैं डिफरेंट सुनती हूँ अक्सर मॉर्निंग में, किसी न किसी को साथ साथ लगा होता है. तो वो यही टॉपिक उसमें चल रहा था, वो यही बात है. तो असल में बात ये है कि वो रहमान उसने पहले कहा कि उसकी मेहरबानी है कि वो पहले कह रहे हैं कि सबसे पहली मेरी सिफत कि मैं रहम करना. फिर बहुत कुछ बताया आगे. तो सिफात में बहुत सारी सिफात हैं जिनसे हमें डरना चाहिए. सही है. आप क्या कह रही हैं? और किसी सिर्फ के बारे में इस तरह नहीं है, जिस तरह रहमत के बारे में डिटेल्स आती हैं, जगह जगह कहा जाता है. और अपनी तारीफ का भी जिक्र हुआ जब वहां पर, तो साथ ही रहमान बताया सूरह फातिहा में. तो बात ये है कि अगर वो कह देता कि मैं नहीं हूँ रहमान रहीम, जाओ जो कर लो कर सकते हो कर, तो हमारे पास कौन सी लॉजिक थी कि हम सवाल भी करते. तो रब का बंदे का काम होता है बात मानना. ये उसकी मेहरबानी है कि वो जस्टिफाइड सारा सिस्टम रखता है. वरना वो दुनिया बना देता और कहता मेरी बात मानो तो फिर फर्ज है. ये तो रहमत के साथ कहा जाता और उसमें हमारा बेनिफिट ही बेनिफिट रखा. इस पे तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए. ये है बेसिक चीज. तो बंदे का आपस में हम एक दूसरे से करते हैं कि भाई तुमने नहीं किया, जस्टिफाई करो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं. रब के साथ की बात नहीं. ये एक बंदे का जो असल रिश्ता वो ये है. ये तो रब की मेहरबानी है कि उसने फिर भी मोहब्बत का दर्जा भी दे दिया कि बंदे और रब के दरमियान मोहब्बत होती है. ये बहुत बड़ी बात. सो अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम हमेशा तेरी इताअत और फरमाबरदारी करें और हमें एहतसाब करना है अपनी जिंदगियों का कि हम फरमाबरदारी की किस काम पर हैं, प्लान करना है और तौफीक करनी है. सो मैं यानी हम सब हमेशा कुरान से जुड़े रहते हैं और उसके तमाम हुकूक अदा करने की कोशिश करेंगे, दूसरों को इसके बारे में तबलीग करेंगे. और मीसाक जमा है मवासीक. क्या जमा है? मवासीक. ठीक है. उसके अलावा अगर कुलूब है तो इसका वाहिद क्या है? कल्ब. ओके. उसके अलावा इजल का जमा अभी हमने पढ़ा था उजूल. फाइन. ठीक है जी. क्यूसी वन वाले अफाल में हम रफाना हमें मिल रहा है. पढ़िए. रफा यरफउ इरफा राफिउन मरफूउन रफउन. ऑलराइट. उसके बाद हम देखते हैं जनाब क्या था अभी. समिया बहुत दफा पढ़ चुके हैं. ठीक है. समिया ना. इसी तरह कुफ्र, ये कफर और यकफुर से आ रहा है और कुफ्र बेहतर है बेसिकली. ठीक है. क्यूसी 2 के हवाले से अगर हम देखें तो अखद ना अभी हमने देखा है नसर यंसुरु उनसुर से अखज़ याखुज़ु कुज़ आखिजुन आखुजुन और अखजुन. अखज़ करना तुम्हें भी हम यही कहते हैं. रदिया नसिया हमने पढ़ा था क्यूसी 2 के आखिरी लेसन है ना. रदिया नसिया सबसे लास्ट लेसन था. तो उसी पैटर्न पर कविया यकुवा इकुवा कवियुन मकवियुन और कुव्वत. यानी वो कवि हुआ, वो कवि होता है तो कवि हो ताकतवर हो. ठीक है. ये मानिए इसका. और ये कमजोर है बल्कि डबल कमजोर है. वाह और या दोनों कमजोर आ गए. बहुत कवि है अपनी कमजोरी. सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह. बड़ी शायराना बात की आपने. अपनी कमजोरी में बहुत ही कवि है. मानी जो है वो कुव्वत है और हरूफ जो है वो कमजोर है. चलिए. कौला कालू हम पढ़ चुके हैं बारहा. ऐसा ही ना इसको देख लेते हैं. अदा यादी इंजी से असा यासी इसी आसी मासीयुन मासी. ये अल्फाज भी आसी मैं बंदा यासी हूँ. एक मेरे फेवरेट नातों में से उसके अल्फाज बड़े अच्छे हैं. दिल को लगते हैं. आप दुआ मांगते हो मगफिरत के गुनाह. हाँ. तो आसी और मासीयत और ये लफ्ज हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं बशर्ते कि हम उर्दू बोलते हो सही से. हाँ. प्योर उर्दू में बड़े अल्फाज ज्यादा अल्फाज हैं जो होती है, कई हमें नहीं पता होते. और मजीद भी अफाल में से हम जैसे रजिस्टर बता रही थी आप ये फाइंड आउट करी थी आता युक्ति ये वही है.
اسلامہ یسلمو سے، لیکن کیونکہ یہ حمزہ والا بھی ہے کمزوری ہے تو آواز اس کی اس وزن پر نہیں لگ رہی. آتا یؤتی آتی مہتن مہتن کیتا، ٹھیک ہے. اور یہ آتا آتو کیوں؟ کیونکہ ہدا والے پیٹرن میں جیسے تھا نا آخری حرف اگر کمزور ہو تو جو 5 باتیں اپلائی ہوتی ہیں وہ اس پر بھی ہوتی ہیں. امید ہے ہماری QC4 کے سارے لوگوں کو اب تک یاد ہو گئی ہوں گی. ابھی بھی اگر یاد نہیں ہے تو آپ گروپ میں میسج کریں تاکہ وہ وہاں پر بھی ہم شیئر کر دیں. 5 باتیں ویسے یاد ہوگی آپ کی. اچھا جی، اس طرح سے ہم اشربا کی بات کر رہے تھے کہ یہاں پر اس کا پیسو یوز ہوتا ہے. اسلامہ سے کیا ہو، اسلامہ یسلمو اسلم، اشربا یشربو اشرب، ٹھیک ہے. اس نے پلایا وہ پلاتا ہے پلا، ٹھیک ہے. مسلم مسلم مشرب مشرب اشراب اسلام، ٹھیک ہے. تو یہ اس سے پیسے آ رہا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہو گیا سر، ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم نے آیات 77 سے 93 مکمل کی ہیں. آپ سب کو بہت مبارک، ہم سب کو بہت مبارک کہ ہم نے 3 صفحات QC4 کے تھرو مکمل کیے ہیں. یس مڈ کوئز تیار ہے بھائی. یہاں تو لوگوں کے فیس سے لگ رہا ہے کانفیڈینس بالکل تیار ہے. ابھی کر لیں مڈ کوئز؟ نہیں ابھی گرامر رہتا ہے، رکیے. اگلے جمعہ المبارک کو انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں مڈ کوئز کی ریویژن اچھی سی. اور اس میں جو لوگ دوسری جگہوں پر دوسرے ملکوں میں ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں یا فزیکل کلاس میں سموسے بھی کھائیں گے، ریویژن بھی کریں گے. ویزا لگا لیں اپنا ابھی. ہمارے پاس 2 ہفتے ہوں گے، 1 ہفتہ ہوگا سوری، اگلے جمعے کو اور اس سے اگلے جمعے کو ہمارا کوئز ہو. ٹھیک ہے، تو اپنی تیاری ابھی سے کریں. آخری 2 دن میں کوئی تیاری نہیں ہوتی، پھر وہی کانسیپٹس رہ جاتے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے. QC4 کی تیاری کے دوران ایون آئی ول سجیسٹ کہ آپ ایک دن QC4 پڑھیں، ابھی سے شروع کریں. QC4 کی چیزوں کو ریوائز کر لیں. اگر آپ کو تھوڑی کمی محسوس ہو رہی ہے ایک دن QC2 کو گو تھرو کر لیں. بیسک ایک ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اسٹرکچر ذہن میں بن جائے. میں یہ پڑھا تھا، ان لیسنز میں یہ پڑھا تھا، اتنا تو یاد ہو جائے. کچھ بیسک ٹیبل بھی دیکھ لیں. پھر ایک دن QC3 کو دیں، اس کے بعد QC4 پہ. تو آپ کو اور بھی آسانی ہوگی کیونکہ میجورٹی چیزیں پیچھے آپ کے کانسیپٹ گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ میری اس مشورے میں چلتے ہوئے آپ مجھے کہیں کہ ابھی تک تو ہماری QC3 ہوئی ہے، ایک ہفتہ اور دیں. ایسے نہیں کرنا. وی ہیو 2 ویکس. 2 ویکس ہے نا، یہ ویک بھی ہے، اگلا بھی ہے، تو وی کین ڈو. جی جی حکم کیجیے. اس کو ہم ٹی بریک میں بات کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، ہاں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور نافذ کرنے کی، تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ہم جا رہے ہیں، ہماری چائے ہو رہی ہے ٹھنڈی. ہماری ساری سسٹرز اپنی اپنی چائے، کافی، جوس وغیرہ بنا کر پیے وغیرہ وغیرہ، کھائیں پیے، تھوڑا ریسٹ کریں. ہم ول ٹرائی 10 سے 12 منٹ کے بعد ہم واپس آتے ہیں. زیادہ دیر نہیں لگاتے ہیں، کوشش ہماری پوری ہوگی. تو آپ لوگ 10 منٹ بعد واپس آ جائیں، انشاءاللہ ہم یہیں پر ہوں گے اور ہم اپنے لیسن 13 CD کی گرامر پڑھیں گے. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں ہماری آن لائن سسٹرز میں اس وقت ہمیں دکھ رہی ہیں سسٹرز بہت ساری، جن میں فہمیدہ مختار صاحبہ ہیں، فرحت انجم، فہمیدہ، فرحانہ شاہین، حمیرہ وحید، محمودہ، سلطانہ، نفیسہ، آصف، نویدہ زیب، رضیہ اختر، صبا. صبا تو ہماری کئی ہیں، اب خالی صبا لکھنے سے اٹینڈنس کیسے مارک ہوگی؟ صبا ہماری 2-3 ہے. اس کا شاید پورا نام لکھیں. شگفتہ شاہد، شازیہ کامران، سدس بشیر، سدستان، تسلیم ناصر، تولیہ طارق، طیبہ درانی، ولیہ افرا، سمیرہ ارم. ماشاءاللہ بہت ساری سسٹرز ہماری آن لائن ہو چکے ہیں. اور اسی طرح ہماری آن سائٹ سسٹرز میں بھی بہت ساری سسٹرز ہیں جو بس ابھی واپس آ رہی ہیں چائے پی کر، چائے اور سموسے کے بعد. ٹھیک ہے جی، تو ہم اب چلتے ہیں جی اپنی گرامر کی طرف. بہت ہی دلچسپ جو ہے وہ چیزیں آج ہم سیکھنے والے ہیں گرامر میں. اس میں پہلی چیز ہے جمع تکسیر. جمع تکسیر جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، اس میں کچھ اس کے خاص اس کا استعمال جملوں میں جو ہے وہ آج ہم دیکھیں گے. اور صفحہ نمبر 13 اشارہ سی کے ساتھ یہ گرامر کا حصہ ہے. اور صرف اور نحو کے کچھ اسباق ہیں جو ہم اس کو سیکھ رہے ہیں. یہ سارے ٹاپکس بیسک
ग्रामर में सर्फ के जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, इसी तरह ये नहव के हैं। खुशी की बात यह है कि आज अगला जो लेसन ग्रामर का होगा वो हमें नहव की चीजें यहाँ से सिखाएगा, ठीक है। तो आज बड़ा खास दिन है। हमने अब तक मोनस के सीखे सीखे, दो के सीखे, मजहूल के सीखे, कारुमा फिर हसीबा को भी देखा, इसम मकान, इसम सिफत और इसम तब्दील और इसी तरह इसम मुबालगा और जमा तकसीर। ये हमारा लास्ट लेसन था जिसमें हमने ये चीजें सीखी थी, आपको पढ़ी है ना। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये सारी हम सीख चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो आप देखेंगे जमा तकसीर को अभी हम उसके बारे में कुछ सीखने जा रहे हैं। जमा की दो किस्में हैं, पहली होती है जमा सालिम, ठीक है। और इसको क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इसमें वाहिद का जो लफ्ज है वो एज इट इज सालम जो है वो मौजूद होता है जमा में कुछ इजाफे के साथ, ठीक है। जैसे कि मुस्लिम से मुस्लिमून मुस्लिमीन बना, मुमिनुन से मुमिनून मुमिनीन बना, मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन बना। तो ऐसे उसके बीच में कोई तोड़ फोड़ नहीं होती और बस अपने उसी रूल को आगे फॉलो किया जाता है जमा में भी। तो इसको कहते हैं जमा सालिम। जब हम आते हैं जमा मुकस्सर में, इसको जमा तकसीर भी कह सकते हैं, उसमें ये होता है कि जो जमा सालिम का जो कायदा है उसको तोड़ा जाता है, यानी जो वाहिद में लफ्ज है उसमें टूट फूट का शिकार होता है। वो कभी शुरू में तब्दीलियां आ रही है, दरमियान में, आखिर में, कहीं, तो उसके लिए कोई जो है ना वो किसी का पाबंद नहीं होता। डिफरेंट ढेर सारे पैटर्न हम देखते हैं, कोई 2 3 4 नहीं है, ठीक है। तो उन सारी जो जमा के कायदे हैं उनको जमा तकसीर या जमा मुकस्सर कहा जाता है। जैसे बैत से हम देखते हैं युद्ध, अमल से आमाल, बकरतुन से बकर, बिल्कुल मुख्तलिफ है ये, ठीक है। और ये कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि दूसरी जुबानों में भी ये कायदे इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हम देखते हैं कि मैन आम तरीका एस या ईएस लगा के जमा बनाने का होता है, बहुत सादा। लेकिन मैन कभी भी मैंस नहीं होता, उसकी जमा के लिए मैन बताया गया है। टूथ को हम टूथ्स नहीं कहते, टूथ्स, आई हैव 32 टूथ्स बल्कि वो टीथ होता है। इसी तरह माउस तो हम उसे कह रहे हैं माइस, ठीक है, माउसेस नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खास तौर पे इसलिए कि दूसरी जुबानों में भी ये हो रही है, तो नई बात नहीं है जो हम अपने सर पे उसको बोझ महसूस करें कि ऐसा क्यों है। अच्छा, मजे की चीजें आज जो सिखाई जा रही है ना उनको जरा देखते हैं। हमारे पास एक लफ्ज है वाहिद मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, उसके मुज़क्कर। अब इसके साथ डिफरेंट आप देख रहे हैं कि इस्तेमाल हो रहे हैं अल्फाज। ये अगर मुस्लिम की हम जमा बनाते हैं, आमतौर पे हमने कौन सी जमा सीखी है, सालिम या सालिम, हम वाव नून यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे क्योंकि वाहिद है तो हम वाहिद के हिसाब से देखते हैं। इसको कई तरीके से हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम इसको देखते हैं जनाब, कौन कौन से तरीके हैं। एक तो प्रोनाउंस का तरीका है ना, ज़माइर का, डिटैच प्रोनाउन हम हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हु, अगर उसी मुसलमान के बारे में कोई बात आगे कंटिन्यू कर रहा है, ये ज़माइर होते हैं। इसी तरह कहीं ना कहीं जुमलों में हाजा आ सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी अस्माए इशारा, ये इसम ज़मीर थे, इसम इशारा हाजा है, और सॉरी ये भी है, ज़ालिका भी इसम इशारा है। और फिर ये एक और इसम है, इसको भी हम आगे समझेंगे जाके, अल्लज़ी अल्लज़ीना, वो जो के। तो इस तरह की चीजें हम वाहिद के साथ यूज करते हैं, इन सब की जमा भी हमें मालूम, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें अफाल की, ये तो हो गए ना इसम, ऊपर वाले सारे इसम हैं। अफाल की बात करें तो एक वाहिद मुज़क्कर के लिए हमने पढ़ा कि माजी में फ़ाअला से शुरू होता है, माजी की चाबी। मुज़ारे में हम देखते हैं यफ़अल, और उसी का इसम फ़ाइल अगर हम देखें काम करने वाला, वो क्या होता है, फ़ाइल होता है, ठीक है। सो अगर हम इसको आगे देखते मज़ीद तो हमें पता चलेगा कि अगर किसी की जमा हो तो फिर क्या हो। उसकी जमा की सूरत में मुस्लिमून, मुस्लिम था ना, तो ये सब वाहिद आए थे, जाहिर सी बात है कि इन्हीं की जमा भी यूज होगी। तो जैसे मुस्लिम के साथ अगर हुआ था तो मुस्लिमून के साथ मारन, मुस्लिम के साथ अगर हु था, मुस्लिम हु फॉर एग्जांपल, तो यहाँ मुस्लिम हु, तो ये दोनों आगे डिटैच और अटैच प्रोनाउन में प्लूरल फॉर्म जमा। इसी तरह अगर हम बात करें इसम इशारा की, अस्माए इशारा, तो हाजा की जमा हाउलाई होता है मुज़क्कर के लिए, ज़ालिका की जमा हुदाइका होता है, मुस्लिमून के साथ ये आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ओके। इसी तरह अल्लज़ी, जहां हमने पढ़ा था अगर कोई जमा की बात हो रही है तो अल्लज़ीना, अल्लज़ी की जमा, ये हमें इन्फॉर्म किया जा रहा है, चीजें बताई जा रही है। इसी तरह जमा सालिम में हम ये देख रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं अफाल की, तो माजी में अगर हमने एक मुसलमान की बात की, एक मुसलमान ने कुल फर्ज कोई काम किया, तो हमने कहा फ़ाइल, फ़ाइल, ज्यादा नहीं किया तो फ़ाइल, अब जमा नहीं किया, ठीक है, तस्निया के सीगे की हम बात नहीं कर रहे।
अगर इसी तरह करता है या करेगा, तो जहां हमने कहा यफ़अलु ज्यादा है तो यफ़अलू ना जमा के लिए, इसी तरह अगर फाइल है और करने वाले ज्यादा है तो फाइलून या इन कंडीशन फाइल भी होगा। तो ये इस तरीके से ये सारे हमने देखे। अब इस पूरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सिर्फ एक हमें ये चीजें पहले से पता है, सिर्फ गो थ्रू किया कि ये रूल चलता आ रहा है, ठीक है। अब आगे हमें क्या बताया जा रहा है, बेसिकली उर्दू में हम कहते हैं बड़ी आंखें, और क्या कहते हैं अच्छी किताबें, और क्या कहते हैं जोड़ी सड़कें, और कहते हैं ऊंची इमारतें। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसी तरह अरबी में जमा तकसीर का लफ्ज वाहिद मुअन्नस होता है। कैसे? अब आप ये देखें, आंखें, अगर एक आंख बड़ी हो तो हम क्या कहेंगे? बड़ी आंख। बड़ी आंख यानी उसमें सिफत वही रहेगी, देख रहे हैं, बड़ी आंख हो या आंखें हो, दोनों सूतों में जो सिफत है वो क्या रहेगी? बड़ी, ठीक है, राइट। इसी तरह किताब है तो अच्छी किताबें हैं तो भी अच्छी किताब, यानी अरे अच्छी किताबें, यानी सिफत का लफ्ज को जमा नहीं कर सकते, हाँ सिर्फ वाहिद जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी आगे हम देखते हैं, इसको मजीद समझ आएगा। इसी तरह सड़कें, तो अगर एक सड़क है तो भी चौड़ी सड़क है, हम ये नहीं कहेंगे चौड़ी सड़कें, सिफत वही उसको भी बता रही है, ठीक है। इसी तरह इमारत, ऊंची इमारत या ऊंची इमारतें, ठीक है। तो बेसिकली बताया क्या जा रहा है कि जब हम इनको दोनों को एक साथ देखते हैं, जब हमारे पास है बाइक, ठीक है, जैसे हमने मुस्लिम के ऊपर देखा ना, वाहिद के ऊपर देखा कि उसके साथ ये ज़माइर में हुआ यूज हो रहा है, इसमें इशारा में हाजा जालिका हो रहा है, फिर अल्लज़ी हो रहा है अल्लज़ी वाहिद के लिए। इसी तरह फाइल है, यफ़अल फाइल बेतरतीब मादी मुदारिफ और इसम फाइल इस्तेमाल होते हैं। लेकिन वो पिछली चीज थी जमा सालिम। जब वो मुकस्सर में क्या चीज करती है, वो ये बता रही है जब किसी वाहिद की जमा मुकस्सर में हो रही है, जैसे कि बुयूत, ठीक है, बैत एक घर, बुयूत ज्यादा घर, आप उसके साथ जो लगा रहे हैं ना दूसरी इसम या अफाल उसके साथ यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे मुअन्नस हैं। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि हमारी टीपीआई कहानियां बना के हमें सिखाता है बच्चों की तरह, ताकि इजी वे में समझे। तो वो ये कहते हैं क्योंकि ये कायदा तोड़ता है, ये रूल तोड़ता है, जमा सालिम में तो रूल नहीं तोड़ा जाता, सीधा सीधा चल रहा है, ये रूल तोड़ता है, तो इसकी सजा है कि इसके साथ जो सिफत आती है ना वो जमा में नहीं होती, बल्कि उसको मुअन्नस, मतलब उसका भी कायदा तब्दील कर दिया जाता है, क्योंकि ये खुद कायदा तोड़ता है जेंडर, ठीक है। हाँ जी, तो टिप वो कह रहे हैं टिप के तौर पे उसका जेंडर ही चेंज कर दिया सिस्टर साहिबा के लिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की हद, ठीक है, तो पढ़ने में वो वही रहेगा, लेकिन उसके साथ स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बात करेंगे। यानी इसको आप आसानी के लिए कह सकते हैं कायदा क्राइसिस क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, कायदा तोड़ने की सजा के तौर पे आप इस तरह याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि वो कायदा तोड़ता है, तकसीर करता है, मुकस्सर टूटी फूटी जमा, उसकी वजह से तोड़ फोड़ की सजा में उसको जो है ना वो सनफे मुअन्नस में बदल दिया गया। देख रहे हैं आप, सनफे मुअन्नस में बदल दिया गया। और फिर मजे की बात क्या है कि वो मुअन्नस का भी वाहिद दिया जा रहा है। Are you getting the point? Yes. Are you getting the point, Sister Muniba? Backbenchers. Okay. तो क्या कहा जा रहा है, जो डबल सजा हो गई ना, एक तो जमा जो है जमा तकसीर टूट फूट की इसने, उसकी सजा में एक तो इसके साथ जो भी आप देख रहे हैं इसम या इसम ज़माइर या इसम इशारा, ये जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं या अफ़ाल यूज हो रहे हैं या इसम यूज हो रहे हैं, एक तो उनको मुअन्नस किया गया, ठीक है, और दूसरा मुअन्नस वाहिद किया गया। जैसे हमने अभी कहा, हाँ, तो जैसे हमने कहा इमारतें ऊंची, यानी वो उसको तब्दील नहीं किया जाता। वैसे यहाँ होगा, कुछ मिसालें देखते हैं ताकि हमें और आसानी हो इसको समझने में। मुस्कुराइए, अल्हम्दुलिल्लाह के मुअन्नस का इस्तेमाल आज भी आ रहा है, लफ्ज को सिंगल कर दिया जाए। डबल लोगों के साथ मुअन्नस जोड़ देते हैं ना, जो काम गलत करते हैं उनके साथ फीमेल जोड़ देते हैं। अभी एक अलग टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखिए इनकी शादी करा, मीडिया की बात करिए कि कैटेगरी लाते रहती है उनकी शादी करा, हाँ, कहते हैं इनकी शादी करा दो, एकदम सही हो जाएगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आइए इस उसूल को, ये सारी चीजें हमारी समझने की हद तक, इनका कहीं किताबों के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि हम कहीं नहीं होता ऐसे, हमारी समझने की हद तक है कि इस तरह से हमें याद रहेगा कि ये तो अरबों की मर्जी, उनको तो ये बातें नहीं समझ आती, उनको तो ऑटोमेटिक जुबान बना दी। एग्जैक्टली।
आइए इस उसूल को याद रखने के लिए कुछ मशक करते हैं। गौर से देखें, हुवा बैतुन तर्जुमा, वो एक घर है, वफीही अब्दुन, और उसमें एक गुलाम। अब अगर बैत की जमा बुयूत है और अब्द की जमा इबाद है, तो आप इसकी जमा पूरे जुमले की कैसे करेंगे, अभी आप बताएं। वेरी नाइस, बड़े बड़े जो है वो जीनियस स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने फौरन से सही बताया, हिया बुयूतुन व फीहा इबादुन, यानी बुयूत तकसीर वाली जमा है, इबाद भी तकसीर वाली जमा है, तो उसके साथ एक तो मुअन्नस है और मुअन्नस का भी वाहिद है। ये बस हमें ये रूल है। आप कुरान में देखेंगे ढेर सारी जगह भरी हुई है, पहले भी गुजरी है, जिसमें हम सवाल करते थे ऐसा क्यों हुआ है, हम कोई ना कोई लॉजिक, हमने कहा आगे देखेंगे, हाँ हम कोई ना कोई लॉजिक बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन रीजन ये थी ग्रामर का रूल है। लेकिन ये फीहा जो है इबादुन की तकसीर की वजह से नहीं, फीहा भी बुयूतुन की तकसीर की तरफ से वो डबल वो आया। नहीं, वो हम मानों के साथ से कुछ भी समझ ले, लेकिन उसकी असल ग्रामेटिकल रीजन सिर्फ ये है कि हमेशा तकसीर के साथ आपको ऐसा ही मिले, पीछे के साथ कनेक्शन हो या ना हो। हाजा भाई जल्दी से बताइए, ऑनलाइन सिस्टर्स भी बता सकती हैं। हाजा भाई, हाज़िही बुयूतुन, हाज़िही बुयूतुन, ज़ालिका बैत, तिलका बुयूतुन, वेरी गुड, तिलका बुयूतुन, अल बैतुल लज़ी, अल बुयूतुल लती, अल्लज़ी का मुअन्नस अल्लती होता है, ठीक है, दी वन हु अगर मुअन्नस हो तो अल्लती रहेगा, ठीक है। इसी तरह अस्बहल बैतु जदीदा, अब इसको जरा ध्यान से देखेंगे। अस्बहा मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, अस्बहा का मुअन्नस अस्बहत है, माजी है ये। अस्बहत, अब बनाइए, अस्बहतल बुयूत जदीदतन, बुयूतु जदीदतन, बहतिल बुयूत जदीदा, ये फेल के तौर पे यूज हो रहा है, लेकिन ये मजीद उसकी एक खासियत बता रहा है। अस्बहा का मतलब क्या है? ये कि हो गया, कोई भी चीजें हो जाती है, ठीक है, कि हो गया नया, ठीक है। सो युस्बिहु, अब अस्बहा से युस्बिहु बन रहा है, अस्लमा से युस्लिमु होता है, तुस्बिहुल बुयूतु जदीदतन, लेकिन ये करने में रैपिड फायर की तरह से मजा आ रहा है, रैपिड फायर की तरह मजा आ रहा है। आगे देखते हैं, बैतुल वासिउन, बुयूतुन वासिअतुन, बुयूतुन वासिअतुन, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ और अल्फाज हम देख लेते हैं, कुछ और अल्फाज हम देख लेते हैं। हुआ किताबुन व अलैहि कलम, हिया कुतुबुन कुतुबुन व अलैहा अक़लम, ओके, हिया कुतुबुन व अलैहा अक़लम, मेजॉरिटी ने सही बताया है। हाजा किताबुन, यानी किताब की आप जमा बनाएंगे, और हाजा का हाजा हाज़िही किताबुन, किताबुन, हाज़िही कुतुबुन, कुतुबुन, ज़ालिका किताबुन, तिलका कुतुबुन, अल किताबुल लज़ी, अल कुतुबुल लती, अल कुतुबुल लज़ी, बिल्कुल सही। उसके बाद हम देखते हैं अस्बहल किताबु कदीमा, अस्बहतल कुतुबु कदीमतन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। युस्बिहुल किताबु कदीमा, तुस्बिहुल कुतुबु कदीमतन, कुतुबु कदीमतन। इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में हो तो इंसान अगली प्रैक्टिस में आएगा। अब जब हम अगले लेसन्स पढ़ेंगे, आयात में से अब नया कॉन्सेप्ट पता चल गया, अब हम ये भी फाइंड आउट करेंगे, तो खुशी की बात है, करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, एग्जैक्टली। कुतुबुन जदीदा, अच्छा जी, तो ये हमने पढ़े टूटी हुई जमा के लिए, टूटी हुई जमा के लिए वाहिद मुअन्नस अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। ये सिंपल सी बात है जो हमें समझा दी गई है। आप इस कायदे के दूसरे अल्फाज के जरिए भी मश्क कर सकते हैं, जो आपने पिछले सबक में सीखा है। कुछ अल्फाज और देखते हैं, ज़ौजुन मुतहरुन, अज़वाजुन मुतहरतुन, आपको याद है ये कहीं ना कहीं आया था और हमने ये डिस्कस भी किया था। अज़वाज की जमा में कईयों ने तो इसको कह दिया था बीवी की बात हो रही है, इसीलिए तो मुतहरा कहा, लेकिन जोड़े को कहते हैं। Yes. तो आप देखते हैं कतब यदुन, कतबत ऐदी, ठीक है, ऐदी यद की जमा है, इसकी जमा है, ऐदी जमा है। यजरी नहरुन, तजरी यजरी नहरुन, तजरी अनहार, तजरी अनहार। ओके, कॉन्सेप्ट्स मिस हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स मिस हो रहे हैं, क्या नहीं, नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
अच्छा, तो ये इसको देखने के बाद अब जब हम पुरानी कुछ आयात लेते हैं, वो कह रहे हैं आपको कुछ हिस्सा हम दिखा दें ताकि आप फाइंड आउट कर लें। तो ऑनलाइन सिस्टर्स प्लीज अपने माइक्स को बंद रखिए अगर आप घर में कोई बातचीत कर रहे हैं। अच्छा जी, जैसे ये है, और कौन बड़ा जालिम है उससे जो रोके अल्लाह की मस्जिदें के जिक्र किया जाए, उसमें उसका नाम और कोशिश की। उसकी वीरानी में हम डिटेल में नहीं जा रहे, हमारा काम है यहाँ से वर्ड फाइंड आउट करना। तो यहाँ जमा तकसीर है मसाजिद, मस्जिद से जमा बनी जमा मुकस्सर है ना, टूटी फूटी जमा। तो इसको इसके तरफ तज़किरा हो रहा है तो फी हा का फी ही नहीं, ठीक है। इसी तरह खराबी हा का मस्जिद की वीरानी की बात। इसी तरह अगर हम कुरान में से ढेर सारी मिसालें, पर एक और मिसाल देखते हैं। ये आयात हमारे सामने, ठीक है, और इसमें हम देखते हैं वजहुन की जमा मुकस्सर है वजूह, मुंह, चेहरे। वजहुन एक चेहरा, ठीक है। तो ये क्योंकि जमा मुकस्सर है तो इसके लिए खाशियातुन, आमिलातुन, नासिबतुन, ये 3 इस्म मुअन्नस वाहिद इस्तेमाल हुए, और इवन फेल इस्तेमाल हुए, वो भी मुअन्नस वाहिद में। तस्ला मतलब वो चेहरे, ये लेफ्ट हैंड से ये इशारा है, माजी का पहला सीगा है मुअन्नस का, तस्ला, ठीक है। इसी तरह तुस्का, ये दोनों हम जब तो पहुंचे नहीं है टेक्निकली, तो आखिर में आते हैं, लेकिन तस्ला और तुस्का ये टेबल में ही नहीं पढ़े, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि ता के साथ हमें पता है ना मुदारी का मुअन्नस होता है, तो ये मुअन्नस है दोनों जो इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सिर्फ बताया जा रहा है कि कुरान में हमें बहुत सारी मिसालें मिलेंगी अगर हम फाइंड आउट करें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो टॉपिक कौन सा है, कौन बताएगा? ये बताएगा वो कौन सा टॉपिक वाला क्योंकि हम क्या काटने कूटने वाला। हाँ जी, काटने कूटने वाला। सिस्टर बिल्कुल सही कह रही है। ईद उल अजहा के राइट आफ्टर ईद उल अजहा ये टॉपिक बनता था, और अब देखिए ईद के बाद वेरी नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही आया है ना, जिसमें काटने छुरियां काटने चल रहे हैं, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो आइए हम आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह। ग्रामर, लम प्लस फेल मुदारे, कुछ इससे रेलिवेंट बताया जाएगा, और 3 हरूफ वाले अफाल को हम देखेंगे। यहाँ पर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, आज हम सर्फ के टॉपिक्स हमने जनरली मुकम्मल कर लिए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। और सर्फ के कायदे हमने करने के बाद नहव में से आज हम एक टॉपिक यहाँ पर 13D में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दिस वी हैव डन एंड यस, अभी हमने जमा सालिम जमा तकसीर के बारे में बात की थी, कुछ कायदे सीखे थे। ये वाला कायदा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। ये सारी प्रैक्टिस अभी हमने कुछ देर पहले की है। आइए अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, तो हम इसको टाइम देते हैं और इसको सीखते हैं। राइट, इस सबक में हम फेल मुदारे में होने वाली तब्दीलियों के बारे में बात करें। कौन सी बात? फेल मुदारे में होने वाली तब्दीलियां, जो कि उसी 2 से अब तक हमारा सबसे बड़ा मसला था कि एकदम मुदारे का नून गायब हो गया, जमा में एकदम मुदारे के आखिर में जज़म आ गई। मुदारे में तो कभी जज़म आखिर में होती नहीं, जबर से पेशी होता है, तो वो हमें कहा जाता है आगे चले, छोड़ दे कॉन्स्टेंटली। तो वो अल्लाह का करम है कि हम उस मकाम पे पहुंच गए। हाँ, तो अभी मेरे ज़हन में पता है मुकाम का लफ्ज़ मेरे ज़हन में है सिदरतुल मुंतहा। मेरी कज़न है, उसका सिदरतुल मुंतहा वो भी मुकाम है। खैर, फिर मुदारे इसकी तब्दीलियों के बारे में सीखना आज हम शुरू करते हैं। आपका माइंड कैसे काम करता है? तो क्या मतलब इससे हमारा नहीं करता, जैसे हमारा नहीं करता। सॉरी प्लीज, आप ऐसा कुछ ना सोचिए मेरा दिमाग कैसे काम करता है। मैं तो खुद सीख रही हूँ उस फेज में, बस इतना ही समझ आता है जितना बता रही हूँ, से ज्यादा नहीं आता। बहुत सीखने के मैम आपका माइंड सिदरतुल मुंतहा तो बोल नहीं, वो तो मकाम में सिदरतुल मुंतहा पढ़ते हैं किताब में, एम हाई सिंपल मोटो इन लाइफ। तो अच्छा, तो हमारी अभी इतनी प्यारी सिस्टर अभी बात कर रही थी कि देखिए छुरियों की बातें होंगी, तो कुछ काटा जाएगा और कुछ को हैमर से क्या किया जाएगा? हाँ बिल्कुल। तो ये क्या होगा, आइए हम इसको देखते हैं। मेरा पहला आज इस छुरी का काम आज चल रहा है, वैसे छुरी है नहीं, देख रहे हैं इतनी हम्बल नजर से आपकी तारीफ करना होता है, फौरन टॉपिक चेंज करती है, वापस आओ वापस पढ़ाई जो है वो आज से अप्रिशिएट कर रही है। अल्लाह करे मैं इतनी अच्छी इतनी ज़हीन हो जाऊं जितना आपने समझती है ना। अच्छा जी, हम सब अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और मेमोरी हमारी अच्छी हो जाए, आमीन, है ना जी। तो हम जानते हैं कि तफ़अलु इशारे जरूरी है जी। तफ़अलु आप करते हो, तफ़अलूना आप सब करते हो। तफ़अलु आप करोगे, तफ़अलूना आप सब करो। मुदारे है ये,
ओके, यानी सामने वाले की बात हो रही है। जब हम अमर में बात करते हैं तो भी सामने वाले की करते हैं, क्योंकि हुक्म आप सामने वाले को दे सकते हो करने का या ना करने का। तो हमने तफअलू तफअलूना से हमने ये दो चीजें बनाई थी। जब हमने अमर का नहीं किया था, चाहे हमें ये समझाया ना गया हो, लेकिन दिस इज वेरी नॉर्मल कि तफअलू तुम करते हो, तुम्हें जब हमें रोकना है कि तुम ये ना करो, तो हम ला शुरू में लगाएंगे और आखिर में हमने जस्म दे दिया, तो तफअलू से ला तफअल बन गया। तफअलूना क्या था? तुम सब करते हो, मुदारे था ना तफअलूना, सिस्टर शाहिदा, तफअलूना तुम सब करते हो मुदारे, ठीक है। तो उसको जब उन्होंने अमर बनाया ना कि तुम सब ना करो, तो तफअलूना के आखिर से नून हटाया था और शुरू में ला लगाया था, तो ला तफअलू, तफअलूना को ला तफअलू कर दिया। ये अब ये कनेक्शन तब नहीं बताया गया, जरूरत महसूस नहीं हुई कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं करना, किसी पॉइंट में जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए एक ताल्लुक बताया जा रहा है। दैट्स इट, इज दिस क्लियर? ये ताल्लुक बताया जा रहा है कि उन दोनों लफ्जों से, इन दोनों लफ्जों से, मुदारे के इन दोनों लफ्जों से अमर का ताल्लुक है, उन्हीं दोनों की बात, ठीक है। आगे चलते हैं। ये छुरियां पहले से मौजूद थी, अब हम बता रहे हैं चलाया। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, छुरियां हमेशा से मौजूद होती है, लेकिन पहले बच्चों को बताया नहीं जाता छुरियों के बारे में बात ही क्यों करनी। फिर बड़े होते हैं तो उनको बताया जाता है कि आप छुरी से ये काट सकते हो, छुरी से काटो, फ्रूट चाट बनाओ, छुरी के बड़े फायदे हैं, लेकिन दूसरों को छुरी से मारना नहीं है। तो एक टाइम के बाद ही बच्चों को सिखाया जाता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बच्चे नहीं, बहरहाल आप गर्ल्स हैं लेकिन आप खातन हैं, हम सब बेबी थे। सही होता है। अगले लेवल्स के लिए 6-7 के लिए तो हम अभी बच्चे ही हैं, उनके लिए तो है ना, उनसे उनके पास बैठ के जब पढ़ना हो ना तो इंसान कंफ्यूज होता है, इनको बहुत पता है। जब उनके पास बैठ के ग्रामर की बात करनी बड़ा सोचना पड़ता है, जो 6-7 के स्टूडेंट हैं। हम भी इंशाल्लाह वहाँ पहुंचेंगे, इंशाल्लाह गरीबा, आप थोड़ी सी वॉक करो अगर आप नींद आ रही है। चलिए जी, टाइम इज लिमिटेड, हम इसको आगे लेके चलते हैं। ला का मतलब है नहीं या मत। छुरी वाला लफ्ज है ये, लिसन केयरफुली, ये छुरी वाला लफ्ज है ला, जो अपने पड़ोसी लफ्ज की आखिरी हरकत को काट देता है। छुरी, ठीक है। छुरी की शक्ल ला के ऊपर बताई गई है, जो तफअलू के पेश को काट देती है और उसको जज्म देना पड़ता है, पेश तो है नहीं तो सुकून ही आएगा फिर फाइनली। और दूसरी सूरत में तफअलूना की नून को अगर जमा है तो उसके पूरी नून को काट देती है जबर के समेत। और फिर ये तो नॉर्मल बात है कि लाम वाव के साथ फिर आगे अलिफ आता ही है, ठीक है, जमा के लिए ये लफ्ज आता है जो कि जमा का सीगा है। यहाँ के बाद नोट करें कि हम लफ्ज छुरी का इस्तेमाल आसानी से समझने के लिए इसको छुरी का इस्तेमाल हम करते हैं। अरब ये नहीं कहते हमने छुरी से काटा है, ये हमारे लिए टेक्निक्स है, टीपीआई की टेक्निक्स आगे चलती है, तो ये कोर्स इस तरह से आसान करता है। अच्छा जी, आगे छुरियां तेज कराई थी ईद उल अज़हा में सबने, है ना। तो हमारे पास जो फ़अला से मॉडल टेबल बना था वो था यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, यफ़अलु। तो इस रूल के मुताबिक जो अभी हमने पढ़ा है, जब हम लम को वैसे हमने कहाँ पढ़ा था, लम यलिद वाला मतलब, और आमतौर पे इसका मतलब डिड नॉट हमने किया। क्या किया था? डिड नॉट, यानी माजी में नफी, किसी ने ये काम नहीं किया, ठीक है, हमने ये बात आमतौर पे पढ़ी थी। तो लम को जब हम किसी मुदारे के साथ अटैच करेंगे तो इसकी ये लम के ऊपर छुरी बनाई है, ये लम क्या करेगा? वाहिद अल्फाज के आखिर से पेश को काट देगा। जब पेश चला गया तो क्या रह जाएगा? ऑब्वियसली जब कोई जबर जेर पेश नहीं है हरकत तो सुकून रह गया। और जो जमा के अल्फाज जिनमें नून आ रहा है तो वहां पूरे नून को काटेगा जबर के समेत। तो फिर यफ़अलु जब वाहिद में आखिर में सॉरी जमा के सीगे में आखिर में वाव आता है तो ऑटोमेटिकली अलिफ आता है, ये हमने पढ़ा था। जैसे फ़अला से फ़अलु में अलिफ नहीं लिखेंगे गलत होगा, नसरा नसरु में अलिफ लिखना है, चाहे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। इसी तरह फिर अलिफ ऑटोमेटिकली आएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके ख्याल में यफ़अलु के साथ लम छोड़े तो क्या बनेगा? लम यफ़अल। उसके बाद क्या होगा? लम यफ़अल। लम यफ़अल। फिर क्या बनेगा? लम तफ़अल। फिर क्या बनेगा? लम अफ़अल। लम अफ़अल। उसके बाद लम तफ़अल। लम तफ़अल। उसके बाद लम नफ़अल। लम नफ़अल। आखिर में लम नफ़अल। आइए देखते हैं कि हम कितने सही थे। बिल्कुल सही। तकबीर। अल्लाहु अकबर। ये थी छुरी की कहानी। मुझे लगता है आपने कुर्बानी का गोश्त अच्छे से खाया। मैंने तो पहले दिन शाम को चप्पल कबाब बनाए, पहली बार जिंदगी में, और वो अच्छे बने। अभी हमने पढ़ा कि लम माजी के लिए तो वो बात कर रहे हैं, हमारी सिस्टर्स बहुत एडवांस तेज चलती हैं।
ये वो है जो सितारों पे जो डालते हैं कमन, ये वो नौजवान है। इतनी 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 परेशानी की क्या बात है? माजी इस्तमरारी में क्या हुआ था यहाँ से? तो कहा ना वाला हाँ तो हुआ तो था ना। ये मुदारे, ये अभी हमने स्ट्रक्चर की बात, दो तब्दीलियां मुदारे में, दो तरह की तब्दीलियां आ रही है। ये तब्दीली है स्ट्रक्चर की तब्दीली, जिसमें काटा 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 काटा। अब मानी की तब्दीली क्या होगी उसकी बात हम अभी, ठीक है? क्या करेंगे बात? अब सिस्टर मुनीबा समझ आ रहे हैं सीरियसली? पास्ट में चला गया। कभी क्वेश्चन? अच्छा ठीक है। हुआ क्या, स्ट्रक्चर की तब्दीली आपको समझ आई है? ऑनलाइन सिस्टर्स को स्ट्रक्चर की तब्दीली में कोई कंफ्यूजन है सिस्टर शाहिदा? जी नहीं है ना? ठीक है, बात करें सिस्टर, ऑनलाइन सिस्टर। जी मैम समझ आ गई। जी जी समझ आ रही आखिरी है। दफा बता रही हूँ, समझ आ आखिरी गई। दफा नहीं, एक दफा फिर। ठीक है, थैंक यू। लम मुदारी के साथ जब जुड़ता है तो मुदारी के जितने भी वाहिद हैं उनके आखिर से पेश को काट देता है, आखिरी हरकत को, और जज़म रह जाता है, सुकून रह जाता है। और जितने जमा हैं नून के साथ, उनके नून को हरकत समेत काट देता है। बस ये बात है, ये है स्ट्रक्चर की तब्दीली। लफ्ज के स्ट्रक्चर में ये तब्दीली आती है मुदारे में लम आने से। अब मानी में तब्दीली क्या आती है? सच बना है वो हम देखते हैं। लम है माजी, माजी में नफी, डिड नॉट, नहीं किया, नहीं हुआ, समथिंग लाइक दैट। यफअलु, यफअलुना ये था मुदारे, लेकिन वो दोनों जुड़ गए तो मानी कहाँ चला गया? माजी की नफी में चला। मानी कनेक्ट हो गया ना, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसने नहीं किया कर गया, लम यफअल, ठीक है? इशारा वही करेंगे आप, कैसे इशारा करेंगे? ठीक है, लम यफअल उसने नहीं किया, लम यफअलु उन सब ने नहीं किया, लम तफअल आपने नहीं किया। मैं तो सर से इसको करती हूँ, नहीं करते जाओ, सब में है। लम अफअल मैंने नहीं किया, लम तफअलु आप सब ने नहीं किया। ये गर्दन की मसल्स की बहुत एक्सरसाइज बहुत अच्छी होगी। लम तफअलु आप सब ने नहीं किया, लम नफअल हमने नहीं किया, लम तफअल उसका हमने नहीं किया। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है, क्योंकि हमारी जुबान को आदत नहीं है एकदम जज़म और नून हटाने की। जी, एक है वर्ड लम यफअल, एक है वर्ड मा फअल। हाँ, तो ये दोनों के मानी एक ही होता है, मानी के सेंस, लेकिन इनकी सेंस बदलती है जुमले के सीक्वेंस के अंदर। जब हम इसको पढ़ेंगे ना QC 6 में, तो डिटेल आएगी कि कहाँ पे कौन सा सूट कर रहे हैं। लेकिन असल में ये मानी मा फ़अला का, हाँ अभी इसको इतना ही रखें, मा फ़अला का भी जनरली मानी वही जा रहा है, उसने नहीं किया। क्योंकि आपने अच्छी बात की यहाँ पे, क्योंकि ये ज़हन में सवाल आता है कि जब हमने माजी की नफी की थी अरबी बोलचाल में, तो हमें कहा गया था माँ से बताओ, तो यहाँ तो माँ की बात नहीं होगी ना, नफी के लिए 100 लफ्ज दिए गए। अब जुमले की सेंस ही ऐसी बनती होगी कि वहां डिड नॉट लगाना। लम यलिद वलम यूलद में अल्लाह ताला माँ लगा सकते थे ना, कर सकते थे, अल्लाह ताला चाहते तो कर देते, लेकिन नहीं किया ना अल्लाह ताला, ठीक है? और दूसरी बात क्या है, माँ लगता है माजी के इस लफ्ज के साथ, लम लग रहा है मुदारी को कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है जुमले के अंदर इसकी कहीं सेंस बनेगी, उसकी मिसालें आएंगी तो फिर हम पूरे कंप्लीट इसको पेंडिंग रखें अभी इतने। तो हम सर ये कह सकते हैं कि लम लगने की वजह से ट्रांसलेशन में माजी में चला गया। हाँ, ट्रांसलेशन मानी माजी में जा रहा है, स्ट्रक्चर नहीं, वो तो सेंस ही हो रहा है ना, माजी को नफी किया जा रहा है, यहाँ इस मुदारे की नफी की जा रही है माजी सेंस में। जिस तरह हमने पढ़ा था ना इजाजा, कि उसमें इजा जब आ जाता है तो फिर वो माजी का मीनिंग मुदारे में आता है। हाँ, तो इसको जरा देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं हम। अलम यफ़अल का मानी क्या है? अलम यफ़अल क्या उसने नहीं किया, क्या उसने नहीं किया, तो आप कहेंगे लम यफ़अल उसने नहीं किया। यानी आपको यहाँ कुछ नान ला मा लगाने की जरूरत नहीं, लम ऑलरेडी है, बस सिर्फ हमजा हटाते जाए, बनाते जाए। सवालिया लफ्ज़ हटा। एक मिसाल हमें यहाँ मिलती है कुरान में, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। अब आपने अभी लम का इस्तेमाल देखा, लन का इस्तेमाल नहीं देखा। लन का मतलब होता है विल नॉट, फ्यूचर में नफी करोगे आप, विल नॉट काइंड ऑफ वर्ड्स, तो वहां लन आएगा, जिसका इस्तेमाल हम इसी कोर्स में आगे पढ़ेंगे। अब वो कैसे आएगा उसको हम देखेंगे। तो क्या बनता है, क्या हुआ? ये वो आयत है कि जो पाकिस्तानी मर्द खास तौर पे भूल जाते हैं उस आयत में, ये वाला हिस्सा जो एंड में आता है। फिर अगर तुम ना कर सको, ये वो नहीं है, ये तो वो है जब कुरान पर अल्लाह ताला चैलेंज देता है, वो अलग है, आप इससे डिस्कस नहीं करवा,
विल डिस्कस लेटर ऑन और टाइम लिमिटेड है। फिर अगर तुम ना कर सको और हरगिज ना कर सकोगे तो लम तफअलू का कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा है, लम तफअलू का हम आगे अगले लेसन में समझेंगे, इस पे हम बात नहीं कर रहे। तफअलूना था, लम आया तो तफअलू बन गया, नून उसका कट गया कि लम के साथ एक छुरी थी, ठीक है। सो इट वुड बी बेसिकली, फिर अगर तुम ना कर सके तो बेसिकली पास में वो होगा ना, तो ये लम का मतलब ये हथौड़ा लेकर आएगा, लम जो है ये छुरी लेकर आता, तो इस हथौड़े का इस्तेमाल हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। मुस्कुराइए, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ और लफ्ज़ हम देख लेते हैं लेसन एंड होने से पहले, जस्ट फ्यू मिनट्स रिक्वायर्ड। आइए अब हम एक और फेल नसरा को लेते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। हमारे पास था यंसुरु, यंसुरुना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरुना, तंसुरु, तंसुरु। तो हमने देखे कि 3 वाहिद यहाँ पर जो है वो 3 वाहिद है, 4 वाहिद है, 3 उसमें से वाहिद मुज़क्कर है, 2 3। इन सब के आखिर में असल में क्या था? पेश, पेश था। उसको क्यों काटा गया? क्योंकि लम के साथ छुरी होती है, उसने उस पेश को काटा। और इस हमारे पास यहाँ 3 जमा है, जैसे यंसुरुना जमा था, तंसुरुना मुजारे में जमा था, नंसुरु जमा था। अच्छा ये मुन्नस भी आप देख लेते हैं, ये भी वाहिद था हमारे पास, ठीक है। तो जितने भी मुदारे में जमा थे उनके आखिर में अगर नून था, जैसे यंसुरुना, तो उस नून को काटा गया, ठीक है। और जब नून को काटा गया तो ये रह गया, उसकी वाव तक रह गया, और अलिफ पे वाव की वजह से जब जमा होता है तो अलिफ लगता है, जमा की निशानी। हाँ, नंसुरु को तब्दील करने की जरूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि उसके आगे कोई नून नहीं था, तो उसपे वही रूल लगा जो के ऊपर लगा वाहिद के लिए। हाँ, तो एक दफा पढ़ लेते हैं। लम यंसुर उसने मदद नहीं की, लम यंसुर तुम सबने मदद नहीं की, लम तंसुर तुमने मदद नहीं की, लम तंसुर मैंने मदद नहीं की, लम तंसुर आप सबने मदद नहीं की, लम तंसुर हम सबने मदद नहीं की, लम तंसुर उस मुअन्नस ने मदद नहीं की। मदद, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और हम इसको देखते हैं जनाब। इसकी बोलचाल अगर हो तो बिल्कुल सेम, हमजा आप हटाते जाए, आपके जवाब बनेंगे, आप रिस्पॉन्स करें मुझे। अलम यंसुरु, यंसुर, लम लम यंसुर, अलम यंसुरु, लम यंसुरु, अलम तंसुर, लम अंसुर, अलम तंसुरु, लम नंसुर, ठीक है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। कमजोर अफाल को अगर हम नजर डालें तो उसमें क्या होता है, हमारे पास काला से बना था, यकूलू कहता है, यकूलूना सब कहते हैं, तकूलू तुम कहते हो, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना सब कहते हो, नकूलू हम सब कहते हैं, और तकूलू वो मुअन्नस कहते हैं। मुअन्नस कहते हैं। अब यहाँ पे लम लगेगा तो कैसे होगा, कुछ आइडिया है? कमजोर हटेंगे, पहले बेचारे मौके की तलाश में होते हैं, हम कब जाए मौके की तलाश में होते हैं। हाँ बिल्कुल, बात तो सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम वाहिद देख लेते हैं, वाहिद 1 2 3 और 4, ठीक है। लम आने की वजह से लम ने सबसे पहले क्या करना है, आखिरी वाले पेज वाव को हटेगा, काटना है, तो बन जाए आ जाएगा जस्म। और ये वाव कहाँ चला गया? आगेगा कमजोर है आगे। 2 जज्म अरबी में इकट्ठे नहीं होते, ये भी गलत है। अब अगर लाम पे हम जज्म लगाएंगे, वाव पे भी जज्म लगाएंगे, एक को तो हटाना पड़ेगा, हटाया किसको जाएगा? कमजोर। तो वाव को हटा दिया और ये यकुल बन गया। क्या बन गया? यकूल नहीं हो सकता। तो कभी भी 2 जज्म अरबी में इकट्ठे होते ही नहीं, पढ़े नहीं जाते, रूल नहीं, ठीक है। वाव पे जज्म ऑलरेडी है, जैसे शायद जब हमने लाम पे भी जज्म लगाया, वाव पे भी जज्म, लाम पे भी जज्म, इकट्ठे पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा इन दोनों में से एक जज्म को हटाओ, कमजोर वाले को हटाया तो फिर पूरा वाव हटा दिया ना, तो बन गया यकुल, लम यकुल, लम तकुल, लम तकुल। अब जब हम जमा की बात करेंगे, ये हमारे पास जमा है, ये जमा है, ये भी है, लेकिन ये वाहिद जैसा है, दिखने में नून नहीं है तो इसकी तब्दीली की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, नकुल हो जाएगा इनकी तरह। जिनके आखिर में नून है, छुरी ने उनके नून को जबर समेत काट दिया और आखिर में उनकी अलिफ आ गया, तो क्या बना? लम यकूलू, लम यकूलू, लम तकुलू। लम तकूलू। अब हम देख लेते हैं कि आगे क्या आ रहा है, ठीक है। अगर हम देखें हमने सही किया है एग्जैक्टली, इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। लम यकुल, लम यकुलू, लम तकुल, लम अकुल, लम तकुलू, लम तकुलू, लम नकुल, लम तकुल। बिल्कुल।
اسی طرح اگر ہم آگے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے ہماری آن لائن سسٹرز میں سے ہینڈ ریز کریں آپ میں سے کوئی یہ ٹیبل پڑھ کے بتا دیں ترجمے اور ٹرانسلیشن کے ساتھ. سسٹر سندس آپ مائک آن کریں. شی از ویری ایکٹیو ماشاءاللہ. لم سسٹر یقل سندس. اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کہا. لم یقل اس نے نہیں کہا. لم یقولو ان سب نے نہیں کہا. لم تقل آپ نے نہیں کہا. لم اقل میں نے نہیں کہا. لم تقول آپ سب نے نہیں کہا. لم نقل ہم سب نے نہیں کہا. لم تقل اس عورت نے نہیں کہا. تھینک یو سسٹر، تھینک یو ویری مچ. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں. علم یقل سے یہ سوال جواب کرتے ہیں. سو آئی ریکویسٹ سعدیہ نجم صاحبہ آپ سوال کریں اور ولیہ افرا جو ہیں وہ جواب دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علم یقل. لم يقل. علم یقولو. لم يقولوا. علم تقل. لم أقل. علم تقولو. لم نقل. ویری گڈ، تھینک یو سو مچ. تو آگے چلتے ہیں ہم جناب، اور ہمیں مثال بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے اس طرح کا ٹیبل جو ہے وہ کہاں پڑھا تھا؟ QC1 پہ. یہ نا بیسیکلی ولد یلیدو کا ٹیبل. کیا ہے یہ؟ ولد یلد. ولد یلد. سورۃ الاخلاص میں ہی یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ تھا یلیدو. کیا تھا یہ؟ یلیدو. یلیدو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ جنتا ہے یا جنے گا. یلیدو. تو اس مضارع کے ساتھ سسٹر مناہل یہاں دیکھیں سورۃ الاخلاص میں یہ مضارع تھا یلیدو. اس کے ساتھ جب لم آیا تو اس نے مضارع کے آخر والے پیش کو جزم میں تبدیل کیا تو لم یلد، اور اس کا معنی تھا وہ جنتا ہے یا جنے گا. لیکن لم کے آنے کی وجہ سے معنی ماضی کی نفی میں چلا گیا. یعنی اسٹرکچر کی تبدیلی یہ تھی کہ پیش جزم میں تبدیل ہوا، معنی کی تبدیلی یہ ہے کہ نفی ہوئی ماضی. تو یہ ایک رول ہے جس کو ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا، یہ ایک زبان ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح لم یولد، یہ پھر پیسو میں وہی لفظ آگے پیسو میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے. آئیے اب ہم ایک کمزور فعل کو مزید دیکھ لیتے ہیں آخر میں، یہ ہمیں تاکہ کوئی کہیں کنفیوز نہ کرے. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ کیسے تھا؟ یہ آپ کو یاد ہے یہ کیسے تھا؟ واؤ کے ساتھ. ایگزیکٹلی یہ بھی ہے، بلکہ آگے بھی ہے. ہم نے جو یدعو پڑھا تھا اس میں آخر میں واؤ بھی آتا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ہمیں ایک دم سے یاد ایسے نہیں آتا، یعنی اس کے آگے آٹومیٹیکلی یہاں پہ واؤ آ رہا تھا. یدعو بنتا ہے اس طرح سے جب ہم نے اس کو پڑھا تھا. ٹھیک ہے. یدعو یہاں پہ واؤ بھی آئے گا. اگر ہم مضارع کی بات کریں، ابھی لم نہیں لگایا، پھر یدعونا، پھر تدعو، آئین کے بعد واؤ ہے جزم کے ساتھ، پھر ادعو، پھر تدعونا، پھر ندعو. نہیں پڑھتے لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ان سب واحد کے آخر میں واؤ تھا. یہاں پہ بھی آخر میں واؤ تھا، یہاں بھی واؤ تھا، یہاں بھی واؤ تھا، یہاں بھی واؤ تھا. لم آیا تو اس نے واؤ کے اوپر پہلے ہی جزم تھا، اس کو ختم کر دیا گیا نا. ہاں، تو یہ یدعو ہو گیا اور یہاں سے نون کو ہٹایا گیا اور یہ الف آیا. تو لم یدعو، لم تدعو، لم ادعو، لم تدعو، لم ادعو، پھر لم تدعو، لم ندعو، لم تدعو. یہ ہمیں دیکھنے میں پڑھنے میں تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہے، لیکن جب ہم اس ٹیبل کو سامنے رکھ کے پریکٹس کرتے ہیں تو یہ بہت رول وہی فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری چلیں آگے چلتے ہیں، آخری ٹیبل ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں یہ اسی طرح کی بول چال ہے، یو کین پریکٹس. فتح سے یہ بن رہا ہے. آن لائن سسٹرز میں سے ہینڈ ریز کریں کون پڑھنا چاہے گا اس کو، ہم بھی آپ کو فالو کر لیں گے. فتح سے یفتحو، یفتحونا، تفتحو، افتحو، تفتحونا، نفتحو، تفتح. اس کو لم لگائیں. سسٹر اب ہماری سسٹر ہیں لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہوا. ہماری اوپو والی سسٹر کون ہے؟ اپنا نام بتائیں. اوپو CPH2235. سسٹر نام بتائیے. Are you listening? آپ کا مائک آن ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے. چلیں ہم سسٹر ولیہ افرا سے ریکویسٹ کریں گے. سسٹر آپ یہ ٹیبل پڑھیے اور ترجمہ بھی کیجیے. لم افتح اس نے نہیں کھولا. لم یفتحو ان سب نے نہیں کھولا. لم تفتح آپ نے نہیں کھولا. لم افتح میں نے نہیں کھولا. لم تفتحو آپ سب نے نہیں کھولا. لم نفتح ہم سب نے نہیں کھولا. لم تفتح عورت نے نہیں کھولا.
ओके सिस्टर बलिया, इंडिया में मौसम कैसा है? सिस्टर बलिया, इंडिया में मौसम कैसा है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गर्म है। आज रात और कल का दिन कैसा था? यहाँ तो बहुत अच्छा था, आज की रात बड़ी ठंडी थी और कल का दिन भी। वहाँ कैसा था? गर्मी बहुत है। अच्छा, आप कौन से एरिया में होती है इंडिया में? जी मैं हैदराबाद साउथ। हैदराबाद। बहुत Yes. हॉट एंड ह्यूमिड। चलिए हम आएंगे आपके पास, वहाँ का मौसम एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। वीजा लगवाते हैं। सर्दियों में आएंगे। ठीक है जी सिस्टर बलिया। ओके, आई एम सो हैप्पी सिस्टर बलिया ने कोर्स शुरू होने के बाद हमें ज्वाइन किया, लेकिन हर क्लास में प्रेजेंट। आई एम सो हैप्पी एंड आई अप्रिशिएट एवरीवन। तो इसी की तरह की बोलचाल है जो हम प्रैक्टिस करेंगे। हमजा हमजा हटाना है, ठीक है, बाकी सब पढ़ते जाना है। अच्छा जी, इसी तरह जैसे हमने ये जो है ना यदऊ की बात की, इसी तरह यहाँ पे भी यहाँ पे जो है वो लम यहदी या का, ठीक है। हाँ, तो लम यहदी, लम यहदू, लम तहदी, लम अहदी, लम तहदू, लम नहदी और लम तहदी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी बोलचाल है। सिर्फ इस रूल को ज़हन में रख के हमें प्रैक्टिस करनी है और नए नए टेबल निकालने की कोशिश करनी है। इस हद तक जो 3 हुरूफ वाले, अभी मजीद वाले हमने नहीं पढ़े, ठीक है। 3 हुरूफ वाले टेबल्स को हमने प्रैक्टिस करनी है। और जो कोई कंफ्यूज करे उसके बारे में ग्रुप में मैसेज करें, हम खुद भी उस पर गौर करें, फाइंड आउट करें कि ये कंफ्यूज कर रहा है, लम लगाने से छुरी कहाँ चलाएं, समझ नहीं आ रही। उसकी बात हम करेंगे। मुस्कुराइए, आज हमने सर्फ और नहव दोनों के हम कदम रख चुके हैं, दोनों की दुनिया में। और खुशी हुई हमें कि हमने जो ईद की छुरियां जो चलाई हैं, छुरियां तेज की थी, वो हमें किसी में भी काम दे रही है। और मुस्कुराते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने, आप अब रिवाइज क्या कर रहे हैं, मिड क्विज के लिए गौर से सुन रहे हैं। आयत नंबर 77 समेत 93 तक सारी चीजों को पढ़ें, उनके तराजिम एक एक टुकड़े का आना चाहिए। अब हम QC4 के लेवल पर हैं। इसम फेल हर्फ जो बेसिक है, स्पेशली वाहिद जमा, अगर वो इसम है या मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान होनी चाहिए। अफ़ाल है तो अफ़ाल, क्योंकि उसमें वेरिएशंस हैं, उसमें चीजें ज्यादा हैं, तो अफ़ाल को समझें। जितने हमने पढ़ लिए हैं, ज्यादातर हम पढ़ चुके हैं, तो वो सेहतमंद है, कौन सा है, 3 हर्फी या मजीद है, उसको देखें। उसके बाद कोर्स का तारुफ, मुअन्नस के सीगे हमने एक लेसन में बनाए थे, 2 के सीगे, मजहूल, करुमा, हसीबा का वजन, इस्म, मकान, सिफत, तफ्दील, मुबालगा, ये एक कॉन्सेप्ट है। इनको डिवाइड करें डेज पे, और 2 हफ्ते हैं आपके पास हमारे पास, हम इसको शुरू करें प्रैक्टिस करना। जमा तकसीर, और फिर जमा तकसीर के बारे में आज हमने कुछ बातें पढ़ी। और फिर लम और मुदारे 3 हर्फी अफ़ाल के साथ आज सीखा। ये सब हमारे मिड क्विज का हिस्सा होगा। इसकी बुराई हम अगले जुमे को इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। आप सब लोग मौजूद रहे, और जो सिस्टर्स हमारी यहाँ एक दूसरे को जानती हैं, वो एक दूसरे को तैयार करेंगे क्लास में मौजूद, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अपने प्रैक्टिसेस इन 7 होमवर्क्स के थ्रू जारी रखें जो कोर्स 1 में शुरू हुई थी। और ठीक है, और अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने